કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કે આપણે જોઈએ છે કે ઘણા પદાર્થો આપણે સ્મેલ થી ઓળખી શકીએ છીએ. જે રીતે હવામાં ગેસ છે, કોઈક સરસ સુગંધ આવે તો આપણને ખબર પડે છે કે આ મોગરાની સુગંધ છે, કે આ ગુલાબની સુગંધ છે. કોઈક રસોડામાં કોઈક રસોઈ થતી હોય, વઘાર થતો હોય, એની સુગંધથી આપણને ખબર પડે. એ પણ અદ્રશ્ય જ છે, પણ છતાં આપણને ખબર પડે છે એના લક્ષણથી, સિમ્ટમ્સથી. એટલે આ લક્ષણ એવું વસ્તુ છે કે એક વસ્તુને બીજી વસ્તુથી જુદું પાડે. તમે કેમેસ્ટ્રીમાં પણ ભણ્યા હોય તો બધા ગેસીસ જે બતાવવામાં આવે છે એના કોઈક ને કોઈક જુદી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય છે બધાની, કે જે કેરેક્ટરિસ્ટિક થી આપણે એ પદાર્થને ઓળખી શકીએ, અદ્રશ્ય હોય કે દ્રશ્ય હોય. એટલે કે આ લક્ષણો શું છે તે આપણે હવે સમજીએ કે આત્માના કયા લક્ષણથી આપણે આત્માને જાણી શકીએ કે આત્મા જેવું કંઈક છે. કારણ કે આત્માની વાત બધા કરે છે, પણ જયારે આત્મા જ ખબર ના હોય તો આત્મા ઉપર વિચાર કેવી રીતે થાય? કારણ કે આત્મા ને શરીર બંને જીવને એક જ લાગે છે. જીવ અનાદિકાળથી શરીરમાં વસે છે, એટલે શરીરને તે પોતાનું માને છે અને અંદર વસતા આત્માને ભૂલી જાય છે. એટલે આત્મા જો સમજવો હોય તો તેના લક્ષણથી જ સમજાય. એનું આત્માનું પહેલું લક્ષણ છે ચૈતન્યતા. આ આત્માનું જીવનું મુખ્ય લક્ષણ છે ચૈતન્યતા, જે બધા જ જળ પદાર્થી, આ દુનિયાના સર્વ જળ પદાર્થી એને જુદું પાડે છે. કોઈ પણ બીજા પદાર્થમાં જીવ નથી, અને જેમાં જીવ આત્મા છે એ જીવ પદાર્થ છે. બાકીના બધા જળ પદાર્થ છે. અને આ ચૈતન્યતા ગુણ એટલે શું? તો કે જેનાથી જ્ઞાન થાય અને વેદન થાય, જેનાથી જીવ બીજા ભાવોને જાણી શકે, અને સુખ દુઃખ નું વેદન આત્મા કરે છે. અને જુએ છે આત્મા. જો આપણા શરીરમાંથી જો આત્મા જતો રહે છે તો આંખ જોઈ નથી શકતી, આંખ ભલે ખુલ્લી હોય છે. અને સુખ અને દુઃખ નું વેદન પછીથી જીવ ગયા પછીથી એ શરીરને થતું નથી, નહીં તો એને અગ્નિમાં નાખે નહીં કોઈ. જો એ શરીરને દુઃખ થતું હોય તો કોઈ અગ્નિમાં નાખે નહીં. એટલે આ સુખ અને દુઃખ નું વેદન જે થાય છે એ આત્મામાં થાય છે. એને ચૈતન્યતા કહેવાય, કે જે જાણી શકે અને જે વેદન કરી શકે. અને એ કોઈ પણ જીવમાં હોય, નાના જીવમાં પણ આ હોઈ શકે છે. કારણ કે જ્યાં આત્મા છે ત્યાં વેદન છે. એટલે તો આપણે ફૂલ ઝાડ ઉપર ચાલવાનું નાખે છે, ફૂલ ઝાડ તોડવાના નાખે છે, એમને પણ વેદન થાય છે સુખ દુઃખનું. એટલે જ્યાં પણ આ ચૈતન્યતા છે એ જીવ છે, અને જીવને આ વેદન છે, સુખ દુઃખ નું વેદન છે, અને એમને જ્ઞાન પણ છે. અક્ષરના આનંદ ભાગનું જ્ઞાન તો નિગોતના જીવને પણ હોય છે. એ તો જ્ઞાન ના હોય તો સંપૂર્ણ જળ થઈ જાય. જો ચૈતન્યતા ના હોય તો જળ થઈ જાય. અને જળ ને જીવનો ડિફરન્સ જ આ છે. એટલે ભલે આપણે નિગોતના જીવને જોઈ નથી શકતા, કારણ કે આપણું જ્ઞાન એટલું નિર્મળ નથી, એટલે આપણે જોઈ નથી શકતા. જ્ઞાન જેટલું નિર્મળ થાય એટલું તમે વધારે જોઈ શકો. અમારું જ્ઞાન જેટલું ચોખ્ખું થાય એટલું તમે વધારે જોઈ શકો. What is the meaning of Vedan? Vedan feelings. वेदन मीन्स फीलिंग्स. आपको जो सुख पेन और हैप्पीनेस, हाँ ना, आपको जो सुख दुख का फीलिंग्स होता है ना, उसको वेदन बोलते हैं. ओके. सुख दुख का होता है, गर्मी ठंडी का होता है, जो भी वेदन होता है, कोई भी वेदना होती है, वेदना मीन्स तकलीफ भी होती है, वो भी आत्मा को होती है.
अंदर से शरीर में से आत्मा निकाल दो ना, तो फिर कैंसर का रोग है ना, तो भी कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ आत्मा को कैसे होगी? तकलीफ तो बॉडी को होगी ना। ये तो बॉडी को ही होती है, लेकिन आत्मा जुड़ता है ना बॉडी के साथ। आत्मा के कर्म के कारण ये बॉडी है, बाकी तो बॉडी नो कर्म है। बॉडी कुछ नहीं करती, जो करता है आत्मा ही करता है। बॉडी कुछ नहीं करती। बॉडी अगर कुछ करती होती तो अंदर से आत्मा निकल गया, उसके बाद बॉडी करेगी ना जो करना है। कुछ नहीं करती, इसलिए तो जला देते हैं। वेदना होती अगर, तो मरने के बाद भी वेदना होती ना। वो बॉडी को नहीं है, उसकी अनुभूति आत्मा को है। अगर आत्मा है तो ही वो अनुभूति होती है, सुख की या दुख की। शरीर को तो एक माध्यम है, उससे आपको दर्द हुआ या खुशी हुई, पर उसका अल्टीमेट फीलिंग आत्मा को जाती है। और दूसरी बात, वो अल्टीमेट फीलिंग में आप जो आपके पास मन है, ज्ञान है, उसका उपयोग करके आप जिस तरीके से सोचते हो, वो कर्म बंध का कारण बनता है। इसीलिए आत्मा कर्म बंध का कारण भी बनता है। वचन काया के योग बनते हैं ना, वो आत्मा में बनते हैं। तो वो अल्टीमेटली वो आत्मा के साथ जुड़ता है। ओके। फिर दूसरा लक्षण है, आत्मा देह प्रमाण છે, ये शारीरिक बाहर नहीं। जो आत्मा है वो देह के अंदर ही है, देह के बाहर नहीं है। शरीर के बाहर आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर के बाहर भी आत्मा होती तो उसमें भी चैतन्यता होती है ना, ये शक्ति देखने की, वेदन करने की बात। इसलिए देह जे છે એમ જ આત્મા છે। એટલે દરેકનો આત્મા પોતાના શરીરમાં જ છે। કીડી હોય તો એનો આત્મા પણ એના જ શરીરમાં છે, અને હાથી હોય તો એનો આત્મા પણ એના જ શરીરમાં છે, એની બહાર નથી। मोर क्लैरिफिकेशन कि भाई पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला तो लगे उस जैसा। मतलब जो बर्तन में अपन ले लेते हैं ना, पानी उसके एरिया में आ जाता है। वैसे जीव मनुष्य के शरीर में है तो पूरा सर से, बाल से लेके पैर के नाखून तक सब में प्रसर जाता है, उससे बाहर नहीं होता है, उसके एक्सटेंडेड पार्ट में नहीं होता है। अगर आपने एक 3 फुट की गैलरी झुलाई है, समझो बाहर की ओर टेरेस बनाया है बिना नीचे सपोर्ट के, लेकिन झूला हुआ है आपके घर में, तो वो भी आपके फ्लैट में गिना जाएगा। ऐसा आत्मा में नहीं है। जहां तक उसका एरिया है उसी में सिमट के रहता है आत्मा। और जो जैसा शरीर मिला है, सुई के तो नोक पे करोड़ों जीव आते हैं ना, तो उतने में ही उनका करोड़ों का जीव आ जाता है, और हाथी के शरीर में आता है। मतलब पूरा एक्सटेंड होके बाहर नहीं निकलता है। આત્મા એટલે આત્મા અંદર જ છે, શરીરની અંદર। એટલે જો આત્મ ધ્યાન કરવું હોય તો શરીરની અંદર જ જવું પડે, બહાર જવાની જરૂર નથી। બહાર ભટકવાથી આત્મજ્ઞાન ના થાય। અંતર્મુખ જીવ થાય અને અંતર્મુખ થઈને નિમગ્ન થાય આત્મા સાથે, તો તેના સર્વ કર્મ તૂટી જાય। એટલે આત્માની સાથે જો અંદર જેને લીનતા કરે જીવ, બહારની બધી ધમાલ છોડે, તો એના સર્વ કર્મનો ક્ષય થઈ જાય। એટલે શાસ્ત્રમાં પૂજ્યપાદ સ્વામીએ આત્માની 3 અવસ્થા બતાવી છે કે બહિર્મુખ આત્મા, તો કે એ જીવ કેવો હોય કે જે ઇન્દ્રિય અને મન દ્વારા જેનો વેપાર ચાલતો હોય, જેનો મનનો જ વેપારમાં બીઝી હોય, 5 ઇન્દ્રિયોના વિષય કસાયોમાં, 5 ઇન્દ્રિયોના જે 23 વિષયો છે, આંખ કાન નાક, એમાં જ મસ્ત હોય અને મનમાં મસ્ત હોય। એટલે મનમાં 5 ઇન્દ્રિયો અને મનના વેપારમાં બીઝી હોય, એવો જીવ।
જે બહિર્મુખ જીવ કહેવાય છે, બહિરાત્મા કે છે. પછી અંતર્મુખ આત્મા કોને કહેવાય? તો કે જે ઇન્દ્રિયો અને મનનો વેપાર જેનો બંધ છે અને તે પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તે અંદર જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. 5 ઇન્દ્રિયો અને મનનો વેપાર બંધ છે અને પોતાના અંદરના સ્વરૂપમાં જવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એમાં લીન થવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એવો આત્મા, એને અંતર્મુખ આત્મા કીધો છે. અને ત્રીજો છે તે પરમાત્મા, એટલે કે જે અંતર્મુખ થવાની જે પ્રયત્નમાં છે જે જીવ, તે અંદર રહેલા પરમાત્મા સ્વરૂપ સાથે કનેક્શન કરે છે, અનુસંધાન કરે છે. અને જ્યારે તેનું આ અનુસંધાન થાય છે ત્યારે પરમાત્મા છે એ જીવ. એટલે આ આત્માની 3 અવસ્થા બતાવી છે, તે બધી અંદર જ છે. એટલે અંદર જાઓ તો જ તમને પરમાત્મા મળે. બહાર પરમાત્મા છે જ નહીં, પરમાત્મા અંદર જ છે ને અંદર જાઓ એટલે સર્વ કર્મનો ક્ષય થાય. એટલે આ થયો બીજું લક્ષણ, આત્મા દેહ પ્રમાણ છે. ત્રીજું લક્ષણ છે આત્મા અસંખ્યાત પ્રદેશી છે. પ્રદેશ એટલે કર્મના એક પૂતગલને સમાવવાની જગ્યા. એટલે જે નાનામાં નાનો ભાગ, પરમાણુ, એટમનો નાનામાં નાનો ભાગ જેને પૂતગલ કહેવામાં આવે છે, એને સમાવવાની જગ્યા, એને પ્રદેશ કહે. અને એવા અસંખ્યાત પ્રદેશો આત્મામાં છે, ગણાય નહીં એટલા. પણ એ પ્રદેશો ફિક્સ છે. એટલે હાથીમાં જેટલા છે એટલા જ કીડીમાં છે અને એટલા જ આપણામાં છે. પ્રદેશો કોઈ દિવસ ઓછા થતા નથી. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે તે ઓછા નથી થતા. અને બીજું કે આ આત્માનો સંકોચ અને વિસ્તાર થઈ શકે, ઇલાસ્ટિક જેવો છે. જેટલો ખેંચો એટલો ખેંચો થઈ શકે. એટલે હાથીમાં હાથી જેટલો થાય, કીડીમાં કીડી જેટલો થાય, મનુષ્યમાં મનુષ્ય જેટલો થાય. અને એટલે આ સંકોચ ને વિસ્તાર છે, એને લઈને લોક પ્રમાણ પણ થઈ શકે, આખા લોક પ્રમાણ થઈ શકે. એટલે શાસ્ત્રમાં આવે છે કે કેટલાક કેવળ જ્ઞાની જીવો હોય છે જેમને હજી 4 અઘાતી કર્મો બાકી છે. હવે 4 અઘાતી કર્મમાં એમનું આયુષ્ય કર્મ જો વહેલું પૂરું થતું હોય તો તેવા સમયે એ જીવ છેલ્લા 16 સમય બાકી હોય આયુષ્યના, એ સમયે આ પોતાના આત્માને આખો લોક પ્રમાણ કરે છે. કારણ કે આ આત્મા આયુષ્ય કર્મ પૂરું થાય છે, પણ બીજા 3 કર્મો હજી છે, નામ કર્મ, ગોત્ર કર્મ અને વેદનીય કર્મ. એ જો એનાથી વધારે હોય તો પછીથી આ ક્રિયા કરવામાં આવે છે, જેને કેવલી સમુદ્ઘાત કહેવાય છે. કે જે એ આત્માને આખો લોક પ્રમાણ ફેલાવે. આખા લોક જે 14 લાખ રાજલોક પ્રમાણ છે એટલો આખો એને ચાદરની માફક ફેલાવે. અને પછી ચાદરને જે રીતે ખંખેરી અને અંદરથી જે બધી રજ નીકળી જાય એવી રીતે આ બધા કણ ખરી જાય કર્મના ભૂતકર. અને પછી એને સમેટી લે, ત્યાંથી સિદ્ધ લોકમાં પહોંચી જાય. પણ એ છેલ્લા 16 સમયમાં જ થાય. એટલે આપણા તો આંખના પલકારાથી ઓછા સમયમાં થઈ જાય કે 8 સમયમાં એ પહોળો કરે, ખંખેડે ને બીજા 8 સમયમાં બંધ કરીને સીધો આયુષ્ય છોડીને જતો રહે, શરીર છોડીને આત્મા. એટલે લોક પ્રમાણ પણ થઈ શકે છે, પણ એના પ્રદેશો સેમ જ રહે છે. કોઈ પણ જીવમાં આવે, ઇવન નિગોદના જીવમાં પણ આ અસંખ્યાત પ્રદેશ છે તે ચેન્જ નથી થતા. એટલે આ ત્રીજું લક્ષણ છે. હવે ચોથું લક્ષણ છે આત્મા પરિણામી છે. એટલે જડ નથી, એમાં પરિણામ થાય છે. મૂઢ નથી, જડ નથી. કે જડમાં કોઈ પરિણામ નથી થતા. આપણે આ જળ બુક છે કે આ છે એમાં કોઈ પરિણામ નથી થતા. પરિણામ એટલે જેમાં આત્મા સંવેદના થાય છે, કોઈ પ્રકારની સંવેદના થાય અને એ સંવેદના આત્મામાં ઝીલાય. ધારો કે બહાર ગરમી છે તો એ સંવેદના આત્માને થાય છે કે ગરમી છે,
ઠંડી છે તો એ સંવેદના આત્માને થાય છે. બહાર વરસાદ પડે છે તો એની ખબર પણ આત્માને જ પડે છે. એટલે સંવેદના અને જ્ઞાનનું પરિણામ અત્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ તો આ જ્ઞાનનું પરિણામ જે થાય છે, જે બોધ થાય છે, તે આત્માને થાય છે. એટલે આત્મામાં પરિણામ આવે છે, પરિણામી છે, જડ નથી. આ ચોથું કારણ, ચોથું લક્ષણ. હવે પાંચમું લક્ષણ છે આત્મા અમૂર્ત છે. એટલે તેનું કોઈ મૂર્તિ રૂપ નથી. જેવું અરૂપી છે એવું અમૂર્ત પણ છે. એટલે એનું કોઈ મૂર્તિ રૂપ નથી. મૂર્તિ રૂપ એટલે કેટલીક ફેરી આપણા લોકો ધ્યાનમાં બેસે છે ત્યારે ધ્યાનમાં કોકને કઈક તેજ દેખાય કે કોઈક એ દેખાય તો એને આત્મા માની લે છે. કોઈક દીવો દેખાય, કારણ કે એ તો તમારા મનના વિચાર છે. કારણ કે આત્મા તો અમૂર્ત જ છે, દેખાતો છે જ નહીં, ક્યાંય જણાતો નથી. એટલે કોઈ જીવે કોઈ ઇલ્યુઝનમાં નહીં ખેંચાઈ જવાનું કે હું આંખો બંધ કરું છું મને આત્મા દેખાય છે. હા, કેટલીક ફેરી જીવોને અભાવલય હોય છે. દરેક જીવોને અભાવલય હોય, પણ અભાવલય એ તો તમારું લેશિયાનું પરિણામ છે. લેશિયા એટલે મનના વિચાર. આ લેશિયા શાસ્ત્રમાં 6 બતાવી છે: કૃષ્ણ, નીલ, કપટ લેશિયા અને તેજો લેશિયા, પદ્મ લેશિયા અને શુક્લ લેશિયા. એટલે જે બી લેશિયા હોય એવું અભાવલય દેખાય. આપણે ભગવાનના ફોટા જોઈએ છે કે ભગવાનનું કોઈ પિક્ચર તમે લો તો પણ તમને જો એની અભાવલય ચારે બાજુ દેખાય છે કે વ્હાઈટ કલરનું હોય કે યલો કલરનું હોય. તો એ એમની સારી મનની સ્થિતિ બતાવે. કોઈ ગુરુનું પિક્ચર હોય તો પણ. અને જો આપણો અભાવલય લેવામાં આવે તો એ આપણા જેવા મનના વિચાર છે એ પ્રમાણે આવે. કારણ કે આ 3 લેશિયા તો અધોગતિમાં જ લઈ જાય. કૃષ્ણ, નીલ ને કપટ લેશિયા. એટલે આપણા મનના વિચારો એટલા બધા અધમ હોય. અને તેજો લેશિયા, પદ્મ લેશિયા ને તેજો લેશિયા હજી તમને અધમમાં લઈ જાય, ઉપર પર લઈ જાય. પણ પદ્મ લેશિયા અને શુક્લ લેશિયા તમને ઉપર લઈ જાય, સ્વર્ગલોક કે મનુષ્ય કે દેવલોક કે મોક્ષ. એટલે આ આત્મા અમૂર્ત છે. પછી છઠ્ઠું છે આત્મા અગુરુ લઘુ દ્રવ્ય છે. અગુરુ લઘુ એટલે જે નથી હલકું નથી ભારે. એટલે જેવો દેહ મળે એવો આકાર ધારણ કરી લે. કીડીનો દેહ મળે તો કીડીનો આકાર ધારણ કરી લે. હાથીનો મળે તો હાથીનો ધારણ કરી લે. ડાયનોસરનો મળે તો ડાયનોસરનો ધારણ કરી લે. કે મનુષ્યનો મળે તો મનુષ્યનો. એટલે જેવો દેહ મળે એવો આકાર આત્મા ધારણ કરી લે છે. અચિતી છે 7મું, आत्मा स्वाभाविक द्रव्य है. ये अगुरु लघु क्या था, वापस बताइएगा. अगुरु लघु मीन्स नहीं हल्का है नहीं भारे है, और जिस बॉडी में जाता है उस बॉडी का रूप धारण कर लेता है. चींटी में गया तो चींटी जैसा हो जाता है, हाथी में गया तो हाथी जैसा, मनुष्य में गया मनुष्य जैसा, ऐसा ही रूप धारण कर लेगा. ओके. और जब शरीर नहीं होता है तो उस सीधा ऊपर चला जाता है स्वर्गलोक में, देवलोक सिद्ध हो जाता है. तो अपन लोग कहते जो भूत वगैरह है तो उसमें तो शरीर नहीं होता, तो उसमें आत्मा होती है. उसमें वैक्रिय शरीर होता है, वो रूप बदलता रहता है. उसका शरीर होता है ना, हर चीज का शरीर होता है. मतलब नरक में भी शरीर ऐसा वैक्रिय होता है, फ्लेक्सिबल, इलास्टिसिटी जैसा, जैसा टेढ़ा करो ऐसा हो जाता है, ऐसा शरीर होता है. फिर सातवां लक्षण है आत्मा स्वाभाविक द्रव्य है, એટલે નેચરલ છે. આત્મા નેચરલ મેટર છે, કોઈ સંયોગથી ઊભી નથી. કોઈ સંયોગથી ઉત્પન્ન નથી થયું. કોઈનું કેટલીક વસ્તુઓ આપણે જોઈએ છે કે એકબીજાના મિશ્રણથી ઉત્પન્ન થાય,
કેમેસ્ટ્રીમાં જોઈએ છે કે હાઇડ્રોજન ને ઓક્સિજન મિક્સ કરો તો વોટર બને. એવું કોઈ સંયોજનથી, કોઈ પણ સંયોજનથી ઉત્પન્ન નથી થયો આત્મા. नेचुरल उसका कोई केमिकल वो नहीं बन सकता है कि C2O ऐसा कुछ नहीं बन सकता. नहीं, इसलिए आत्मा જેની ઉત્પત્તિ નથી એનો નાશ પણ નથી. જે વસ્તુ તમે ઉત્પન્ન જ નથી કરતા એનો નાશ છે નહીં. મા બાપ જે ઉત્પન્ન કરે છે એ શરીર છે. મા બાપ શરીરને પેદા કરે છે, આત્માને નહીં. કારણ કે આત્મા તો અસંયોગી છે. એટલે આત્મા નેચરલ મેટર છે. કોઈ એને પેદા એટલે ઉત્પન્ન થતું નથી તો એનો નાશ પણ નથી. એટલે આ બધા ખાસ ખાસ લક્ષણો છે કે જે જાણવાથી તમે આત્માનો વિચાર કરી શકો. પછી 9મું છે આત્મા कर्ता છે અને ભોગતા છે. देखो आपने पूछा था ना आत्मा कैसे होता है, तो आत्मा ये करता है और वो करता है इसलिए भोगता है. क्योंकि जब करता है तो कर्म बंद होता है, तो कर्म बंद होता है तो उसको भोगना पड़ता है, भुगतना पड़ता है. એટલે આત્મા કરતા છે અને ભોગતા છે. अज्ञान છે आत्मा जब अज्ञान में है तो कर्म का करता है, लेकिन जब ज्ञान में चला जाता है ना तो अपने स्वभाव का कर्ता हो जाता है. करता तो है लेकिन वो हमको दिखता है जब स्वभाव में. अभी सिद्ध लोक में भी जो भी आत्मा है, आत्मा डेड नहीं हो जाता है, वो अपने स्वभाव में मस्त रहता है, अपने स्वभाव का करता रहता है. अनंत सुख अनंत आनंद में वो रहता है अनंत काल तक. लेकिन अब हम क्या है, हम बाहर में है, विभाव में है, इसलिए विकार होता है, इसलिए कर्म होता है. जब स्वभाव में चले जाते हैं तो वो अपने शुद्ध स्वभाव का कर्ता बन जाता है और शुद्ध परिणाम का कर्ता हो जाता है. आत्मा का शुद्ध परिणाम आ जाता है. फिर 10वां है आत्मा शुद्ध છે છતાં અનાદિથી સંસારી છે. मीन्स निश्चय से आत्मा शुद्ध है फिर भी अनादि से संसारी है. जैसे सोना भी शुद्ध ही होता है, लेकिन अनादि से वो खान में ही होता है. खान में से बाहर निकालो, उस पे प्रोसेस करो, तब शुद्ध होता है. वैसे ही रत्न पाषाण होते हैं, कनक पाषाण होता है, लोह पाषाण होता है. लोह भी बाहर निकालो, प्रोसेस करो तो आयन बन जाता है, लेकिन अनादि से वो खान में ही रहता है. वैसे आत्मा भी अनादि से संसारी है और उसको सिद्ध बनाना है. वो 916 होता है ना, उसे हम द्रव्य से सोना कहते हैं. द्रव्य से वो सोना गिना जाए. 9K होता है तो द्रव्य से उसको सोना ही बोलते हैं अपन देखने में. लेकिन उसमें सोना कितना है तो अपन ने लिखा ही है आगे कि 916 91.60% ही सोना है इसमें. आप समझे? जो टंच होता है, जो 100 टंच होता है ना, उसे सोना कहते हैं. उसमें जो मिलावट रहती है ना, जो 916 किया ना, तो उसमें क्या मिलाया? आइदर सिल्वर मिलाया या कॉपर मिलाया. बराबर. तो वो जो कॉपर और सिल्वर का भाग है ना, उसे वैसे व्यवहार में हम उसे भी सोना कहते हैं. 10 ग्राम सोना मतलब 916 10 ग्राम सोना है, तो वो एक्चुअली तो 9 ग्राम और 160 मिलीग्राम ही है सोना. पर द्रव्य से अपन उसको 10 ग्राम सोना बोलते हैं. वैसे आत्मा में इस तरीके से है कि भाई प्योरिटी वाला जो होता है ना पार्ट, उसे ही आत्मा कहते हैं. मतलब वो जो भी चीज है ना, उसे हम लोहा बोलते हैं तो लोहा है, लेकिन वो लोहा प्योर नहीं है. 100% लोहा नहीं होता है कभी. जब उसको प्योरीफाई करते हैं तो ही 100% होता है. वो बात कर रहे हैं. ऐसे आत्मा शुद्ध है, लेकिन फिर भी अनादि से वो अशुद्धि है में पड़ा है. अनादि से वो संसारी है.
क्योंकि ये अशुद्धि है उसमें, और ये अशुद्धि और हर आत्मा में सिद्ध होने की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति हमको निकालनी है, उसको भवितव्यता बोलता है। तो ये भवितव्यता કેવી રીતે પ્રગટે? જો આત્માને શુદ્ધ, દરેક આત્મામાં શુદ્ધ થવાની શક્તિ છે, તો આ ભવિતવ્ય પ્રગટાવો તો આત્મા શુદ્ધ થઈ શકે। તો કે ભવિતવ્યતા પ્રગટાવવા માટે શુદ્ધ ધર્મ કરવો પડે, શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ કરવી પડે। તો કે શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય? તો કે પાપ કર્મના નાશથી થાય। पाप कर्म का नाश करो तो शुद्ध धर्म की प्राप्ति हो सकती है, और शुद्ध धर्म की प्राप्ति से आप भवितव्यता, अगर जीव भवी है तो वो सिद्ध बन सकता है। नयन भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अपन किसी भी गति में है तो अगर सिद्ध बनता है, आत्मा हर आत्मा सिद्ध बनती, मतलब हर गति के अंदर वो कर्मों का निर्जरा कर सकती है, हर गति में। ऐसा नहीं कि मनुष्य गति ही चाहिए उसको। हर गति में कर्म की निर्जरा होती है, लेकिन मनुष्य भाव में हम सकाम निर्जरा कर सकते हैं, क्योंकि और नए बनते भी है ना हर भाव में। हर भाव में बुद्धि नहीं मिलती। अच्छा, सकाम निकाम, ओके। सकाम निर्जरा अपन सोच के निर्जरा कर रहे हैं, और अकाम निर्जरा मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है, टॉर्चर होते ही रहता है और निर्जरा होती रहती है। एक पेड़ है, वो गर्मी ठंडी बारिश को सह रहा है, उसके पत्ते झड़ रहे हैं, उसकी डालियां टूट रही है, फिर नई आ रही है, पर वो जो उसका प्रोसेस है वो समझदारी का नहीं है ना। एक मनुष्य भाव ऐसा है जिसमें आप समझदारी से करते हो कि चलो मैंने अभी एक सामयिक ले ली, मेरे को 48 मिनट तक ये पाप का व्यापार नहीं करना है, मतलब वो आप जो डिसीजन लेके सहन करते हैं ना, फिर वो पलाठी लगा के आप बैठ गए, पाँव दुखता है, फिर भी पलाठी लगा के बैठ गए, वो जो सहन किया आपने, गर्मी में बैठ गए कि आपको एसी नहीं चलाना है, पंखा नहीं चलाना है, सामयिक ले ली है तो आप बैठ गए, तो वो जो होती है वो सकाम निर्जरा हो गई। आप समझ के कर रहे हैं कि नहीं मेरे को इतना 48 मिनट्स इतना करने का है, उसमें जो पेन आता है वो फिर आपको पेन भी नहीं लगता है, उसमें गर्मी लगती है तो अपन ऐसे ऐसे बार बार नहीं करते हैं। अब हमने मालूम है कि हम लोग पंखा बंद करके, एसी बंद करके इस कमरे में बैठे हैं, आसन लगा के वो पचकान करके या करेवी बन के उच्चार के बैठ गए हैं, इसका मतलब है कि वो जो आने वाला है आने वाला है, दैट्स ऑल। और अगर आप ऐसे निकलने बैठे हो ऑफिस में और एसी बंद हो गया तो आप बार बार ये चलेगा, ऐसे चलेगा, वो चलेगा, क्योंकि आप वो सकाम निर्जरा करने के भाव में नहीं है, या सकाम सोच विचार करके सहन करने के मूड में नहीं है वो। એટલે શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો પાપ કર્મનો નાશ કરવો પડે, અને તેનો ઉપાય છે કે દુષ્કૃતની ગ્રહ કરો, એટલે દેવગુરુની સાક્ષીએ આલોચના કરો, સુકૃતની અનુમોદના કરો, એટલે મન વચન કાયાથી જે સારા કામ છે તેની અનુમોદના કરો, અને 4 શરણનું આશ્રય લો, હરિયંશિત સાધુ અને ધર્મનો। તો આનાથી શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકે, અને શુદ્ધ ધર્મથી જીવ ભવિતવ્યતા પ્રગટાવી શકે, અને જીવ મોક્ષે જઈ શકે। એટલે આ આત્માના લક્ષણો, આટલા 10 લક્ષણો આપણે આત્માના જે જાણ્યા, એના પર જીવે વિચાર, આત્મવિચાર કરવાનો। તો કે વિચાર કેવી રીતે, શું વિચાર કરવાનો કે હું કોણ છું? તમે આ લક્ષણો જાણો પછીથી સમજી શકો કે હવે હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, ક્યાં જવાનો છું, શું મારું કર્તવ્ય છે, મારે શું કરવું જોઈએ, અને અત્યારે આ બધા સંબંધ છે તે રાખવું કે છોડી દઉં, રાખવું કે પરહરવું। એટલે જીવ આવા આત્મવિચાર તરફ આગળ વધે તો એ આત્મજ્ઞાન તરફ આગળ જઈ શકે। એટલે આ આત્માના લક્ષણો થકી જીવ આત્મવિચાર કરી શકે, અને આત્મવિચાર થકી જીવ આત્મજ્ઞાનની નજીક જઈ શકે। બાકી ક્રિયાકાંડ તો શુભ અશુભનું કારણ બનવાનું છે, એમાં શુભ મળે ના શુભ બને। એટલે જ્યાં સુધી તમે જો આત્મવિચારમાં ના જાઓ ત્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન ન થાય।
આ સુખ દુઃખના કારણ બન્યા કરે તહેવારમાં. એટલે આ થયો આત્માના લક્ષણો. હવે આપણે આત્માના ભાવ જોઈએ કે ભાવ. એક મિનિટ, આ 10 જે લક્ષણો છે પાછા નામ કોને? એટલે આત્માના 10 લક્ષણો છે. તે પહેલું લક્ષણ આત્મા ચૈતન્યતા એ આત્માનું પહેલું લક્ષણ છે. પહેલું લક્ષણ. બીજું આત્મા દેહની અંદર છે. આત્મા દેહ પ્રમાણ છે એટલે આત્મા દેહની અંદર જ છે, એ બહાર છે નહીં, તે શરીરની બહાર નથી. પછી ત્રીજું છે આત્મા અસંખ્યાત પ્રદેશી છે એટલે એના જે પ્રદેશ છે, જે કર્મના પૂતગલને સમાવવાના જે પ્રદેશ છે અસંખ્યાત છે, અને આત્મા સંકોચ ને વિસ્તાર થઈ શકે છે એટલે ઇલાસ્ટિક છે. ઓકે, એટલે લોક પ્રમાણ પણ થઈ શકે છે. આ ત્રીજું લક્ષણ. ચોથું લક્ષણ આત્મા પરિણામી છે, જેમાં પરિણામ થાય છે, સંવેદના થાય છે. પછી આત્મા અમૂર્ત છે એટલે તેનું કોઈ મૂર્તિ રૂપ નથી, મૂર્તિ સ્વરૂપ નથી. હા. પછી છઠ્ઠો છે આત્મા અગુરુ લઘુ દ્રવ્ય છે એટલે નથી હલકો નથી ભારે, જેવો દેહ મળે તેવો આકાર ધારણ કરે. આત્મા સ્વાભાવિક દ્રવ્ય છે, નેચરલ મેટર છે, કોઈ સંયોગથી ઊભી નથી થઈ. એટલે કોઈ સંયોગથી ઉત્પન્ન નથી થઈ એટલે જે વસ્તુ ઉત્પન્ન ના થાય એનો નાશ પણ ન થઈ શકે. એટલે જીવે આના પર વિચાર કરી શકે જીવ કે ખરેખર તમે શું છો. તમે દેહ સ્વરૂપ નથી એ જાણો છો, પણ છતાં મહેસૂસ કરવું હોય, ફીલ કરવું હોય તો તમારે આ લક્ષણો ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ. અને આ વિચારથી તમે આત્મજ્ઞાન તરફ આગળ વધી શકો. અને આત્મજ્ઞાન થાય તો દુઃખથી મુક્તિ મળી શકે જીવને. तो प्रेम भाई, ये सारा विचार आत्म विचार अपने तीर्थंकरों ने कर लिया, उन्होंने उसके लक्षण बता दिए कि ये सब लक्षण है. तो हम लोग को क्या आत्म विचार करना है, क्योंकि उनको तो आंसर मिल गया, राइट? तो हमने बोला ना वो विचार करो कि मैं कौन हूँ. हर रोज सोचो मैं कौन हूँ. ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो मेरा. आपको श्रद्धा है ना पूरी कि जो बताया है वो सही है? हाँ. सब अंदर अंदर बैठ गया. हाँ. जो तीर्थंकरों ने बताया आपको बैठ गया. आपको एक समझो एक कार दिया आपको किसी ने, ये 220 तक भागती है या 250 तक, उसका मोनेट हिलता नहीं है. समझो आपने एक मर्सिडीज बेंज ली, वो बोलता है आपको सेल्समैन बोलेगा कि 220 तक, तो उसको कुछ मतलब आपको कंपन भी नहीं होगी. बराबर, आपने समझ लिया, आपकी श्रद्धा भी हो गई. फिर खुला रोड मिला तो एक बार ट्राई कर लो. 210 तक तो ट्राई कर लो. मतलब अभी क्या करना, तब तक तो आप किसी को नहीं बोलोगे कि वो, आप ऐसा ही बोलोगे कि 220 तक तो इसको कुछ नहीं होता है, ये है. पर जब आप 210 तक चला के जाओगे ना एक बार, फिर आप अपने दोस्त को क्या बोलोगे, अरे 210 तक तो मैं गया था, एक जर्क नहीं लगता है, इसका सस्पेंशन ऐसा है, इसका वो ऐसा है, इसका इंजन ऐसा है, इसका वो सब अपन टेस्ट करके बोलते हैं किसी को. तो आपको जब प्रतीति करनी है ना अपने पर अप्लाई करो, उसके ऊपर आपको विचार करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है. तो तब बता तो दिया है, बता तो अनादिकाल से दिया है. अपन तीर्थंकर की देशना में जाके बैठे हैं. पहले ये देखो क्या हमारे में चेतना. मालकोस राग में अपन ने देशना भी सुनी है कई बार. और इसका जो परिणाम होना चाहिए ना, आत्मा परिणाम, तो परिणाम होना चाहिए ना, वो उसकी
उसकी जो इंटेंसिटी होनी चाहिए ना परिणाम की, वो नहीं आई। इसलिए अपन वहां से निकल के वापिस घर चले गए और तीर्थंकर को अपन ने लाइटली ले लिया, समझो। अभी परिणाम अच्छे हुए हैं तो ऐसे हमारे तुम्हारे जैसे जो बोलते हैं ना, उसको भी अपन सीरियसली लेते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि तीर्थंकर की देशना में बैठ के या साधु जीवन लेके आचार्य बन के भी अपन ने इतना सीरियसली नहीं लिया ये ज्ञान। नहीं अभी भी परिणाम नहीं था। अभी परिणाम अगर उसको डेवलप करेंगे ना तो आगे जाके वो परिणाम आपका रिजल्ट लाएगा। ये अभी इसलिए बोला ना कि ज्ञान है ना, ज्ञान को अप्लाई करना है अपने को, अपने ऊपर, खुद के ऊपर। I'm the host of the meeting. મને અને ઘડિયાળમાં નહીં લે. એટલે દિગંબરના પર્યુષણમાં એ લોકો કે 10 લક્ષણ એટલે આ જ 10 લક્ષણ થયા કે ના ના આ નહીં, એ 10 લક્ષણ એ તો આ ક્ષમા આર્જવ માર્જવ આપણે જે નથી કહેતા આપણે 5 મહાવ્રત ને આ બધા છે એ બધા 10 લક્ષણ છે। ઓ અચ્છા આર્જવ માર્જવ ક્ષમા અકિંચ્ય એ 10 છે। 10 જે મેઇન વસ્તુ જો છોડવાની છે જીવે સેલિબ્રેટ કરે છે એ લોકો 10 દિવસ સુધી એક લક્ષણ એ પણ લક્ષણ આત્માના ધર્મના અને એના લક્ષણો એ જે છે ને, ધર્મના લક્ષણ છે। એ ધર્મના ક્ષમા લક્ષણને કરવી, એ લોકો સેલિબ્રેટ કરે છે। ક્ષમા કરવી, આર્જવ એટલે માયા નહીં કરવી, માર્જવ એટલે પેલું એ આપણે સરળતા રાખવી, બધું એ સિમિલરલી આપણે શું કરીએ છીએ જ્યારે આપણે પરિગ્રહ નહીં અષ્ટાંગિકા કરવો। વાંચીએ છીએ ને તો આપણે પર્યુષણના કર્તવ્યો હા અતિચાર હા નહીં, કર્તવ્યો પર્યુષણ કર્તવ્ય પરમિશનમાં શું કરવું જોઈએ, જીવ દયા કરવી જોઈએ, સાધર્મિક ભક્તિ કરવી જોઈએ, એ જે આપણા પર્યુષણના કર્તવ્યો લઈએ છીએ અને પછી વર્ષ દરમિયાન કરવાના કર્તવ્યો આપણે લઈએ છીએ। આપણે પર્યુષણના હવે શું થઈ ગયું છે કે આપણે અહીંયા આવી ગયા સમજો તો પર્યુષણમાં જે આવે છે કોઈ વ્યાખ્યાનકારો એ બીજા વિષયો પર વાત કરતા હોય છે। પણ ટ્રેડિશનલી ઇન્ડિયામાં કેવું છે કે પહેલા 3 દિવસ अष्टानिका वांचन करवामा आवे। हम लोग अष्टानिका का प्रवचन सुनते हैं, उसमें पर्युषण के कर्तव्य, फिर वर्ष दरमियान करने के कर्तव्य और जीवन दरमियान करने के कर्तव्य। एक श्रावक को अपने जीवन में क्या कराना चाहिए कि जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, वो जो बड़े कर्तव्य हैं वो होता है। फिर साल भर में क्या करना है और पर्युषण दरमियान क्या करना है उसका हम बात करते हैं। और उसके बाद 3 दिन के प्रवचन खत्म होने के बाद हम कल्पसूत्र पे प्रवचन होते हैं नॉर्मली। और फिर लास्ट डे जब कहीं साधु महात्मा का योग होता है तो लास्ट डे में सुबह से जो कल्पसूत्र का बेसिक जो सूत्र होते हैं ना, 1200 सूत्र का बना हुआ कल्पसूत्र है, तो 1200 सूत्र को रीड करते हैं गुरु महाराज इन ओरिजिनल फॉर्म। पहले समझा दिया आपको, वो 4 दिन 4.5 दिन में वो समझा दिया। उसके बाद लास्ट डे 1200 गाथाओं का जो सूत्र है कल्पसूत्र, उसको मूल रूप से पढ़ते हैं। और उसके साथ आपने देखा होगा कि वो पिक्चर दिखाते हैं, तो जो रथ में प्रभु का जन्म का पिक्चर होता है, वो मतलब अपने ट्रेडिशनली ये है। इसी तरह दिगंबरों में 10 लक्षण पर्व है, तो मतलब एक गुण को एक दिन हाईलाइट करके वो लोग उसको समझ रहे। अल्टीमेट गोल क्या है कि हर चीज को समझो और जीवन में उतारो। तो सबका प्रेजेंटेशन का फॉर्म डिफरेंट है और बेसिक सबका एक ही है। उनमें भी क्षमा ही है, समझो कि अहिंसा ही है। हमारे में भी उसको पर्युषण के कर्तव्य में लिया है या साल भर के कर्तव्य में लिया है, वो ऐसे ही करते हैं। सेम सिमिलर थिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। राजेंद्र भाई, आपने पूछा ना कि आत्मा का कैसे करे, तो अभी पूज्यपाद स्वामी ने बताया ना कि आत्मा कैसा होता है, बहिरात्मा। हम अभी बहिरात्मा में, तो आत्मा का फीलिंग कैसे होगा? तो इसलिए समझो
हम जब तक ये इंद्रियों का और मन का व्यापार बंद नहीं करते हैं ना, कम नहीं करते हैं ना, तब तक अंदर जुड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ अंदर कि आप साधु बन के ही जुड़ सकते हो। आप सांसारिक रूप में आप कैसे कर सकते हो? संसारी रूप में भी आप हर रोज ऐसा सोचो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर से जो जो खराब काम होते हैं बंद हो जाएंगे कि मैं ये किसके लिए करता हूँ, ये पाप करता हूँ किसके लिए करता हूँ, भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा। एक चीज और राजेंद्र भाई, साधु बनो या श्रावक बनो, कुछ भी बनो, लक्ष्य नहीं आता है ना, तब तक साधु होके भी आप नहीं कर सकते और श्रावक में भी नहीं कर होके कर भी सकते हो। एक बात आपको बताऊं, आपका कितना सोशल गैदरिंग था साल भर में? कितना सोशल गैदरिंग था एक साल में? 10 शादियों में जाते थे आप, मोर और लेस आप अपनी बात करते हैं। 10 शादियों में जाते थे, 10 मैयत में जाते थे, कोई मर गया, कोई चाचा का लड़का मर गया तो उसका उठमना बैठमना जो भी है उसमें जाते थे। साल भर में 10 बर्थडे में जाते थे, 10 पार्टी में जाते थे। ये बेसिक अपना क्या ये सब 6 महीने में कितनी बार गए आप? कौन से चाचा मर गए तो गए, कौन से शादी में गए आप? तो बंद हुआ तो हुआ ना, मतलब उससे निवृत्ति आई ना, जबरदस्ती आई लेकिन आई ना। वैसे पाप के व्यापार से निवृत्ति अपने को जबरदस्ती लाओ या समझ के लाओ, निवृत्ति आती है ना, तो श्रावक भी हो, श्रावक नहीं भी हो, कभी सोच तो सकते ही हो ना। एक अच्छी चीज की सोच तो आती है ना, सोच आने के बाद वो जो क्वालिटीज आना शुरू होगा, सोच आएगी तो क्वालिटी आएगी, वो क्वालिटीज डेवलप होंगी। तो साधु भी बन सकते हैं, पर पहले साधु बन जाओगे ना तो सोच आएगी, वो कंपलसरी नहीं है। क्योंकि अपन जिंदगी में हजारों बार, मतलब ये अपने उसमें असंख्य बार अपन साधु भी बने, मुक्त नहीं भी बने, अपन ने अचीव नहीं किया, लेकिन जो अपन कहीं पे रुक गए कि चलो इतना कर लिया मैंने, अब तो हो गया मेरा, बस अपन संतुष्ट हो गए। और ये लक्षण से क्या जब नुकसान करने की बारी आती है ना, तो अपन पूरा नुकसान करते हैं, लेकिन नफा कमाने की बारी आती है ना, तब अपन निकल जाते हैं जल्दी से, प्रॉफिट बुक करने के मोड में आ जाते हैं। अपना प्रॉफिट बुक हो गया, चलो निकलो। अरे भाई वो तो अल्टीमेट प्राइस पे जाने वाला था, तुमने तो थोड़े से में ही बुक कर लिया प्रॉफिट। ये अल्टीमेट का प्रोग्राम था, रिलायंस 10,000 होने वाला था, आपने 950 में लिया और 1,000 में बेच दिया। फिर 4 दिन के बाद सर खुजाल रहे हैं, ये 1800 हो गया, पर वो होने वाला था। ये तो द्रव्य से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अपन जब भी साधु जीवन मिला ना, तो अपन अच्छा मैं तो साधु हो गया तो मेरा तो कल्याण हो, पर वो जो अचीव करना था ना, जो महात्माओं ने किया ना अचीव, वो करने की राह पे नहीं गए अपन, उसमें संतुष्ट हो गए। इसलिए ये आत्मा में अपन संतुष्ट हो जाते हैं जल्दी से, इसलिए जो अल्टीमेट गोल तक पहुंचने में दिक्कत होती है। और ये आत्मा के लक्षण से क्या सीखने मिलता है कि आत्मा और देह, शरीर दो अलग चीज है। ये पहले आप समझो, बाद में उस पर अमल थोड़ा थोड़ा करते जाओ कि शरीर अलग है, शरीर ऐसा नहीं है कि साधु हो जाओगे तो ही होगा। हाँ, शरीर छूट जा, ये सोच तो कर सकते हैं ना, सोचोगे तब आत्मज्ञान होगा। और साधु आत्मज्ञान करने के लिए साधु की जरूरत नहीं है, आत्मज्ञान होने के बाद दीक्षा लेनी है जरूरी, अगर मुक्त होना है तो। लेकिन पहले आत्मज्ञान पाने के लिए साधु होने की जरूरत नहीं है। ज्ञान पाके साधु होंगे तो और अच्छा रहेगा। हम आएंगे आपके दीक्षा महोत्सव में भी आएंगे, लेकिन वो
पहले आप पहले आत्मा और ज्ञान शरीर को लेके पहचानो। करेंगे तो अच्छा है। शरीर जाने वाला है, शरीर जाने वाला है, आत्मा रहने वाला है, कहीं भी जाएगा। तो एक प्रोसेस है उसका जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस को फॉलो करना है आपने। प्रोसेस की शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हो, चाय पीते पीते भी सोच सकते हो, घर में बैठे बैठे भी सोच सकते हो कि ये इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये आत्मविचार को कर्तव्य रूप धर्म बताया है। 24 घंटे को ये हर रोज करना चाहिए, हर रोज सोचना चाहिए इस लक्षण के बारे में और अपने बारे में कि मैं एक आत्मा हूँ। कहाँ से आया वो भी सोचना चाहिए, वो भी अपने लक्षण से ही पता चलेगा। जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, उसमें से पता भी चलेगा हम कौन से मुंह से आए और कौन से मुंह में जाने वाले हो, वो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। डीप थिंकिंग करते हैं तो उसमें से पता चलता है हमारे पास इतनी शक्ति है, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली है। तो ये लक्षण से सोचना है कि आत्मा अंदर ही है और आत्मा और शरीर दोनों अलग है। शरीर तो कर्म का फल है, आज मनुष्य का मिला है, कल जानवर का मिलेगा। तो मनुष्य में हम समझ सकते हैं। तो ये भेद ज्ञान करो, ये इसको भेद ज्ञान बोलते हैं, देह और आत्मा का अलग होना, इसको भेद ज्ञान बोलते हैं शास्त्र में। ये भेद ज्ञान होना जरूरी है हर एक्टिविटी में, कि आप जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तब भूल जाते हैं आप आत्मा है, और अपना आत्मा विभव में चले जाते हैं, नए कर्म का बंद करता है। ये आत्मज्ञान से अपना जो रिवर्स साइड का प्रोसेस है ना, वो कम होगा और फ्रंट साइड का प्रोसेस थोड़ा बढ़ेगा। और ये आप सोच रहे हो कि एक भाव में अपने मुक्ति होने वाली है या 2 भाव में मुक्ति होने वाली, वो नहीं है। लंबा प्रोसेस डेफिनेटली दिख रहा है अभी, लेकिन चालू प्रोसेस करोगे की तो दिशा तो सही हो जाए। आपको अहमदाबाद से निकल के दिल्ली जाना है तो वो दिल्ली वाला हाईवे तो पकड़ लें अपन, खाली एक बार अपने को दिल्ली वाले हाईवे पे जाके खड़ा रहना है, फिर आगे 1-1 किलोमीटर भी चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। संदीप भाई, ऑन दैट जस्ट एक्सटेंशन ऑफ दैट, कि जैसे अपन एक तो हुआ ये आत्म विचार, दूसरा है कि अपने जो शुद्ध ज्ञान है, राइट, कि अपन समय करते हैं, चलो भाई कुछ सीखे, उसको याद करना, जो कृष्ण सूत्र है उसको याद करते हैं। तो ये सूत्र ज्ञान वर्सेस आत्म विचार, हाउ डू यू बैलेंस? क्या जरूरी है? देखो पहले जरूरी क्या है, आपको क्या करना है। मैंने बोला ना कि जो भी धर्म की क्रिया बताई है उससे या तो शुभ कर्म होते हैं या अशुभ कर्म। अब शुभ कर्म अशुभ कर्म से हम मुक्त होने वाले नहीं है जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। दोनों जरूरी है, ऐसा नहीं है सीधा आत्मज्ञान होने के बाद भी आपके जो कर्म है वो तोड़ने के लिए तो ये शुद्ध धर्म करना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे ब्लड आत्मा में चले जाते हैं कि हमको महसूस हो जाता है कि अभी मैं आत्मा हूँ और मुझे ये शरीर से मुक्त होना है, तब शुद्ध धर्म की शुरुआत हो सकती है। अभी भी हो सकती है, पैरेलल भी जरूरी है। जब तक हम नहीं कर सकते, हम कोई धर्म नहीं करे तो वो अच्छा नहीं है, फिर हम अधोगति में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये करना है ये नहीं करना है, दोनों करना है। आप जो बोल रहे हो उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मुझे ब्लड प्रेशर है, आपको भी ब्लड प्रेशर है। आप डॉक्टर के पास गए, मैं भी डॉक्टर के पास, सेम डॉक्टर के पास गए, बराबर। आपका जो टेस्ट करना जरूरी था, ब्लड टेस्ट वगैरह, वो सब उसने किया, मेरा भी किया, पर दोनों को सेम दवाई नहीं देगा। दवाई कहाँ से डिसाइड करेगा? आपके ब्लड टेस्ट का रिजल्ट, मेरे ब्लड टेस्ट का रिजल्ट। फिर वो देखेगा कि इसको बेसिक ये मेडिसिन के साथ इसका कॉम्बिनेशन देना है और इसको ये मेडिसिन के साथ इसका कॉम्बिनेशन देना है। आपको एक चीज 10 mg वाला देगा, मुझे 12.5 mg वाला देगा, उसके साथ कॉम्बिनेशन में आपको 2.5 mg वाली कोई चीज देगा
और मुझे वो 5 mg वाली देगा। बराबर सही, क्लियर। अगर ब्लड प्रेशर की एक ही दवा होती तो सारे ब्लड प्रेशर वाले डॉक्टर के पास क्यों जाते? नाप लेते कि चलो मेरा 140-100 है तो मेरे को ये केमिस्ट से लाके खानी है, दैट्स ऑल। बराबर। तो वो अपने को गुरु नक्की करना है और खुद नक्की करना है। गुरु के बताए मार्ग पर भी चलना है, साथ में अपने को अपनी पात्रता भी, योग्यता भी डिसाइड करनी है। किसी को इसमें मजा आता है, किसी को इसमें मजा आता है। देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग कर्म। किसी को ज्ञान में सूझता है, उसको पढ़ना, लिखना, सोचना, वही उसका चिंतन करना, लिखना, कुछ भी वो मतलब उसी पे उसका फोकस रहता है। एक आत्मा ऐसा है कि जो शांति से बैठता है और खाली सोचता है, उसकी सोच में चलता है। एक आदमी ऐसा है जो मंदिर में जाके भगवान के सामने भक्ति करता है, उसका अपना समर्पण भाव है, उसका प्रोग्रेस उसी दिशा में होता है। वो सारे मूल रास्ते हैं, वो आगे जाके एक जगह मिलेंगे और फिर अपन सही राजमार्ग पे चढ़ेंगे। आप आगरा से निकले तो आगरा से दिल्ली हाईवे जाने के 10 रास्ते होंगे। आगरा गांव से आप दिल्ली के हाईवे पर जाना है तो आपको 10 रास्ते मिलेंगे, पर वो आगे जाके सारे 10 रास्ते एक चौकड़ी पे इकट्ठे होंगे। उसके बाद दिल्ली का रास्ता शुरू होगा। तो मतलब हर एक को अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धिमत्ता, उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या अनुकूल है। गॉट इट, वेरी गुड एग्जांपल। को बेसिक बनाना है। लेकिन लक्ष्य आत्मा का होना मीरा को भक्ति मार्ग पसंद आया, समझो, और किसी को ज्ञान मार्ग पसंद है। अब हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होती है कि जो शादवाद वाला धर्म है अपना, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, और दोनों एक साथ एक ही चीज पे सही हो सकते हैं। ये महावीर का शादवाद है, वो महावीर की देन है। जगत को महावीर ने जो दिया है ना, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप भी सही हो सकते हो आपकी पोजीशन में, और मैं भी सही हो सकता हूँ, और दोनों एकदम विपरीत भी हो सकते हैं बातों में, और दोनों सही हो सकते हैं। तो आगे जाके जो सही मार्ग लेना है ना, उसके लिए जो छोटे छोटे मार्ग है ना, उसी में हम लड़ने लगे, उसी में बाकड़ने लगे, उसी में अपना ईगो संतोष करने लगे। मंदिर, वो एक बोलता है कि मंदिर नहीं जाना, एक बोलता है कि मंदिर के सिवा उद्धार नहीं होता है, तो एक बोलता है कि मैं आंख बंद करके बैठ जाऊंगा, आंख बंद कर ये सिवा कुछ होता ही नहीं है। तो ये सारे अपन, मैंने कहा ना, प्रॉफिट बुक करने में लग गए अपन। वो प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं थी, अपने को अनलिमिटेड, इन्फिनिट मुनाफा था अपने पास, उसमें अपन प्रॉफिट बुक करने लगे। इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये प्रायोरिटी है या ये प्रायोरिटी है। आपकी जो भी रुचि है वो आपकी प्रायोरिटी है। मतलब मार्ग आपको डिसाइड करना है कि मुझे जाना यहाँ है। बराबर, क्लियर। से लक्ष्य आत्मा का होना चाहिए, और हमारी दिशा हमको तय करनी है कि हम कौन सी दिशा में, हमें कौन सी दिशा में जाना है, और हमारे में क्या योग्यता है, हम कौन सा धर्म कर सकते हैं, कौन सी क्रिया कर सकते हैं जिसमें हमारे भाव जगते हैं, हम वो डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। जो भी क्रिया करो, जो भी ज्ञान किया करो, भक्ति करो, या कोई भी क्रिया करो, अगर हम हमारे लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ते हैं तो क्रिया का भी मतलब नहीं है और ज्ञान का भी मतलब नहीं है। तो पहले लक्ष्य तय करो कि क्या है। मुझे मेरा खुद का एक एग्जांपल देता हूँ राजेंद्र भाई। तो जब स्कूल 12th में थे या कॉलेज में थे तो क्या होता था कि हम लोगों को रुचि थी कि साधु महात्मा जो विहार करके जाते हैं ना, उनकी सेवा करनी है, साथ में चलना है, उनके लिए फैसिलिटीज बनानी है आगे जाके नेक्स्ट स्टॉप पे। तो वो हमारी प्रायोरिटी थी। तो
उसमें जो साधु संतों के साथ चलने का मौका मिलता था, उनकी भक्ति करने का मौका मिलता था, उस टाइम कभी कभी पूजा करना भी रह जाता था ना भगवान, और रोज पूजा भी करते थे भगवान की, तो उस टाइम पूजा करना रह जाता था कभी कभी, क्योंकि सुबह 5:30 बजे गए, ऊपर से उनको साथ लेके निकले, 12 किलोमीटर जाके आए, फिर वो गाड़ी लेने आती थी तो वापिस आते थे, बराबर। तो 12 बजे 1 बजे हो जाता था, फिर कंटाला आता था कि पूजा करने नहीं जाना है, समझो आज। तो उसमें ऐसा नहीं था कि मेरी पूजा रह गई इसलिए मेरा बस अभी खत्म हो गया। मैंने जो मेरी प्रायोरिटी थी साधु संतों की भक्ति करनी है, उनका व्यावच करनी है, तो वो प्रायोरिटी थी मेरी, और मेरा टेस्ट था, मेरा शौक था, समझो, मुझे मजा आता था, समझो, उनके साथ चलने में, उनके साथ सुबह सुबह 9 किलोमीटर चलने में मजा आता था, और दैट वाज द वे। उनके साथ बातें होती थी, उनके साथ सीखने को मिलता था, तो वो इसलिए पूजा रह गई तो चलो आज तो मैं तो कुछ नहीं, मेरे तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको वे नक्की करना है, आगे जाके सब एक जगह मिलने वाला है। इसीलिए पंथ में पढ़ो मत, कोई ये है वो अत्यंत ज्ञानी है और उसके मार्ग पे ही चलना है, ट्रू फॉलोअर बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक अपने खुद के समझदारी के हिसाब से एक गुरु ले लिया अपन ने, अपनी समझदारी के हिसाब से, और वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं ना वो ही दवाई लेनी है। फिर बड़े डॉक्टर के पास बार बार जाने की जरूरत नहीं है। अपना जो फैमिली डॉक्टर एक दवाई देता है ना, और अपने को अनुकूल आती है ना, अपने को पता चलता है कि मुझे कंफर्ट लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो दवाई पे आगे चलते हैं ना, तो अपना स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है। इसलिए हर बार बड़े डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। Got it? Perfect, got it, thanks. और ये मत गच में मत पड़ो। अगर धर्म में आगे बढ़ना है, सबके पास से कुछ न कुछ सीख लो, मतलब सबका रिस्पेक्ट करो। कोई गलत नहीं है, लेकिन सब एक एक जगह पे अटक गए। सब प्रॉफिट बुक करने में लगे हैं, आप शॉर्ट में समझो। और अगर हम भी यहाँ अटक गए न, तो हमारा भवांतर बढ़ जाएगा। 900 की कॉस्ट वाले सारे 1000 में बुक करता है प्रॉफिट, 1050 में बुक करता है, 1100 में करता है। सब भूल गए हैं ये 10,000 होने वाला है, बस दैट्स ऑल। क्योंकि थोड़ी अपनी भी सोचो कि ये क्या है आत्मा, इसलिए मैंने ये बताया कि आत्मा के लक्षण, और उसको ही पाना है। या तो विचार से पाओ, और उसके बाद आत्मज्ञान, अंदर जाओगे तो ही आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान के बगैर तो हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि जब आप एक बार आत्मा का टेस्ट लोगे ना, अंदर हो गया, प्रतीति बोलते हैं उसको, प्रतीति, एक बार ऐसी प्रतीति हो जाती है, फिर वो जीव बाहर नहीं निकलता, फिर मजा आता है, अंदर ही मजा आता है, क्योंकि अंदर आनंद सुख है। और ये ही पाने का है, इसके लिए ये सब धर्म पूरा समझाया है, उसका मतलब ही यही है। लेकिन हम जो समझाए उसमें भी अटक गए कि भगवान की पूजा करो, पूजा ही करते रहो। अरे भगवान को देखना है कि वो भी एक शुद्ध आत्मा है, हमको वहां जाना है, वो हम भूल ही जाते हैं। भक्ति करते हैं तो गाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसके शब्द में भाव नहीं है प्रकट होते। भक्ति से एक लीनता होनी चाहिए, जैसे मीरा की होती थी, जैसे दवा अलग है। बस शॉर्ट में समझो, अपना ब्लड टेस्ट करके अपने को दवाई जो दी है ना उसी को लेना है। और संपूर्ण अर्पणता होनी चाहिए जब भक्ति करो। जब अहम भाव टूटेगा तो आत्मा का शुद्ध भाव निकलेगा। ओके, ये सब बड़े बड़े सेंटेंस धर्म है, क्योंकि धर्म बहुत डिफरेंट दिशा में से बताया गया है। क्योंकि सबके कर्म भी अलग है ना, सबकी दशा भी अलग है। जिसकी अभी संदीप भाई ने बोला, जिसकी दशा जैसी है ऐसी डॉक्टर भी ऐसे ही दवा देगा ना, कि इसको 2 औंस दो और इसको 4 औंस दो। सबको एक तो नहीं दे सकता है।
इसलिए गुरु की जरूरत है, लेकिन गुरु को ढूंढने से पहले अपना लक्ष्य तय करो, हमको क्या चाहिए, तो ऐसा गुरु ढूंढो। नहीं तो कोई गुरु नहीं मिले तो नहीं, हमारा परम गुरु तो है, वो मिलता ही है अपन। हमारा परम गुरु तो ये है। शिद्दत से वो क्या बोलते हैं, शिद्दत शिद्दत से सोचते हैं तो सारी कायनात पिला देती है, वो जो है ना वो बात। सही बात। અત્યારે ટાઈમ થઈ ગયો તમારો? ના ના કઈ નહીં, ચલો એકવાર આઠમો point- આનો ટોપિક લો, આત્માનો ના, ના. ભાવ. તો પછી આઠમો આવું પોઈન્ટ હોય. ફરી કોને? આઠમો પોઈન્ટ કયો આ હતો? ના શું? આઠમો પોઈન્ટ કયો હતો ફરી કોને એકવાર? સોરી, જે સ્વાભાવિક દ્રવ્ય છે અને આત્મા કરતા છે એ બેની વચ્ચેનો એક પોઈન્ટ મિસ થઈ ગયો. આત્મા સ્વાભાવિક દ્રવ્ય છે, આત્મા અગુરુ લઘુ છે. અગુરુ લઘુ છે. એક લખ્યો અગુરુ લઘુ. હા, એ છઠ્ઠો હતો. પછી સાતમો છે ને હા, સ્વાભાવિક દ્રવ્ય છે. દ્રવ્ય. પછી આઠમો આત્મા કરતા છે અને ભોગતા છે. નવમો છે તો આ નવ જ છે મારા ખ્યાલ, નવ છે ને? હા, 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9 જ છે. 9 9 છે. ઓકે, તો બરાબર છે. ઓકે. એટલે હું આ એક નાનો ટોપિક લઈ લઉં, જ્ઞાન લઈ લો, લઈ લો. 5. પછી આવતે વખતે આત્માના ભાવ. હા, આપણે જ્ઞાન 5 પ્રકારના છે. કારણ કે મોક્ષ માર્ગના 4 સહાયકોમાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ છે. એટલે એમાં જ્ઞાન છે એના 5 પ્રકાર છે. મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મન પર્યવક જ્ઞાન અને કેવળ જ્ઞાન. એટલે 5 જ્ઞાનમાં 4 જ્ઞાન તો મૂંગા છે. મૂંગા મીન્સ જેમ મૂંગા માણસને ઊંઘમાં સપનો આવે તો પોતે સમજે પણ બીજાને સમજાવી ના શકે, એવી સ્થિતિ છે બાકીના 4 જ્ઞાનની. 5 જ્ઞાનમાંથી એટલે એક જ જ્ઞાન બોલતું જ્ઞાન છે કે જ્યારે મતિ જ્ઞાન પૂર્ણ થાય એની સાથે જ એના પછી જે બોલી શકાય એવી શક્તિ જે ઉત્પન્ન થાય છે એને શ્રુત જ્ઞાન કહેવાય છે. અને આ શ્રુત જ્ઞાન એ એવું ઉપકારી છે કે જે પોતાનો પણ ઉદ્ધાર કરે અને ઘણા બીજા જીવોનો પણ ઉદ્ધાર કરી શકે. અને કેવળ જ્ઞાનનું કારણ પણ આ શ્રુત જ્ઞાન જ છે. અત્યારે જે આપણે આ લઈએ છીએ તે શ્રુત જ્ઞાન જ છે. એટલે શ્રુત જ્ઞાન વાળો જીવ ગમે ત્યારે કેવળ જ્ઞાન પામી શકે. એટલે માટે શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે શ્રુત જ્ઞાન ને પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. પણ શ્રુત જ્ઞાન થી પહેલા મતિ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું હોય છે જીવને, એટલે મતિ જ્ઞાન ને પહેલા સમજાવવામાં આવે છે કે મતિ જ્ઞાન એટલે શું. કે મતિ એટલે બુદ્ધિ અને જ્ઞાન એટલે સમજ. એટલે બુદ્ધિમાં વિકાસ કરનાર જે જ્ઞાન છે તેને મતિ જ્ઞાન કહેવાય. આપણી જે બુદ્ધિમાં જે વિકાસ કરે એને મતિ જ્ઞાન. એટલે એ જ્ઞાન વડે કોઈ પણ પદાર્થ કેવો છે, તેના ગુણો શું છે, તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય, એ તમામ બોધ મતિ જ્ઞાન થકી થાય છે જીવને. એટલે પદાર્થ કેવો છે, તેના ગુણો શું છે, તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય, એનો બોધ આપણને જે થાય છે તે મતિ જ્ઞાન શું થાય છે. એટલે મતિ જ્ઞાન 5 ઇન્દ્રિય અને મન વડે થાય. 5 ઇન્દ્રિયમાંથી પદાર્થ ગમે તે ઇન્દ્રિયનો વિષય બને, ધારો કે આંખે કંઈક જોયું, કે કાને કંઈક સાંભળ્યું, કે નાકે કંઈક સૂંઘ્યું, કે જીભે કંઈક પદાર્થ ચાખ્યો, કે કંઈક સ્પર્શ થયો,
એટલે તરત આ પદાર્થ કંઈક છે એવું મનને ખ્યાલ આવે છે. આપણા મનમાં એવો ખ્યાલ આવે છે કે કોઈ પદાર્થ છે. એટલે આ પદાર્થ કેવો છે એ આમ મનમાં ખ્યાલ આવે. પદાર્થનું ફિલિંગ્સ ઇન્દ્રિયો થ્રુ થાય. કોઈ દેખાય અને એટલે મન ને ઇન્દ્રિયો બંને નક્કી કરે ત્યારે પદાર્થ નક્કી થાય અને મતિ જ્ઞાન કહેવાય. એટલે પહેલા મન તો ખાલી જોઈએ પણ એમાં તરત મનમાં આપણી ઇન્દ્રિયો કોઈ પણ પદાર્થને જુએ કે એનો ફિલિંગ્સ કરે કે તરત મનમાં સવાલ થાય કે આ પદાર્થ શું છે. એટલે 5 ઇન્દ્રિયો અને મનના સમન્વય વડે પદાર્થનો નિશ્ચય થઈ શકે કે પદાર્થ કેવો છે, શું છે, જાણી શકાય. આને મતિ જ્ઞાન કહેવાય. અને પછી જે એટલે જે પછી શ્રુત જ્ઞાન છે. એટલે મતિ જ્ઞાનના આધારે જે પદાર્થની આપણે ધારણા કરી કે આ પદાર્થ છે કઈ, તે કોઈને હિતકારી થાય તો ઉપકારી થાય એવી રીતે બોલી શકાય એવી જે શક્તિ છે એને શ્રુત જ્ઞાન કહેવાય. જે બોલવાની શક્તિ છે, પદાર્થને સમજાવવાની આપણા શક્તિ જે ઉત્પન્ન થઈ એને શ્રુત જ્ઞાન કહેવાય. અને નંદી સૂત્રમાં તો એવું પણ કહ્યું છે કે સાંભળવા લાયક જે જ્ઞાન છે એ પણ શ્રુત જ્ઞાન છે. એટલે બોલી શકાય ને સાંભળવા લાયક જે જ્ઞાન છે એ પણ શ્રુત જ્ઞાન જ છે. આ શ્રુત જ્ઞાનના શાસ્ત્રમાં 14 ભેદો છે પણ આપણે એમાં અંદર બહુ જવાની જરૂર નથી કે અક્ષર શ્રુત, અનક્ષર શ્રુત, સંઘની શ્રુત. આપણે જોયું હતું ને અક્ષર શ્રુત એટલે આ બધા ચોપડાના પુસ્તકો આપણે તે વખત જોયું જ્ઞાન જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મમાં એ આ શ્રુત જ્ઞાન છે. એટલે જો સંકેતી જીવ હોય તો એના મતિ જ્ઞાન, એનું જે જ્ઞાન હોય એને મતિ જ્ઞાન ને શુદ્ધ જ્ઞાન કહેવાય. બાકી સંકેતી જે જીવ ના હોય, મિથ્યાત્વી જીવ હોય, એના જ્ઞાનને મતિ અજ્ઞાન અને શુદ્ધ અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણી પાસે જે જ્ઞાન છે, કારણ કે એ જ્ઞાન આત્માનું નથી, આત્માનું લગતી જે જ્ઞાન હોય તેને જ આપણે મતિ જ્ઞાન ને શુદ્ધ જ્ઞાન કહેવાય છે. બાકી સંસારને લગતું જ્ઞાન એ મતિ અજ્ઞાન એટલે શ્રુત અજ્ઞાન જ્ઞાન કહેવાય છે શાસ્ત્રમાં. કારણ કે જ્યારે જીવને સંકિત થાય છે ને ત્યારે જ્ઞાન થયું કહેવાય છે. એટલે ત્યાં સુધીનું અત્યારે ભલે આપણે ગમે તેટલા ઇન્ટેલિજન્સ હોય, ગમે તેટલું જ્ઞાન હોય, એ બધું જ જ્ઞાન. પછીથી આવે છે અવધિ જ્ઞાન. આ ત્રીજું જ્ઞાન. આ જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિયની મદદ લેવી પડતી નથી, પરંતુ આત્માનો એ અંગેનો જે સંયમ હોય છે, ઉગાડ હોય છે, એના કારણે જ આ જ્ઞાન થાય છે. આત્માના ઉગાડ એટલે જે અવધિ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ તૂટી જાય તો જીવને અવધિ જ્ઞાન પેદા થઈ શકે. અને અવધિ જ્ઞાન એટલે અવધિ એટલે હિત, હદ સુધી, અમુક સીમા, લિમિટ. હા, એટલે જીવને અમુક દ્વીપ સુધી દેખાય કે અમુક દેવલોક સુધી દેખાય કે અમુક નરક સુધી દેખાય કે અમુક હદ સુધી દેખાય, અમુક દેશ સુધી દેખાય. હા, એટલે રૂપી પણ આ જોઈ શકે ખાલી રૂપી પદાર્થોને, અરૂપીને ના જોઈ શકે. બુદ્ધિ જ્ઞાન રૂપી પદાર્થ જેનું રૂપ છે એ જ જોઈ શકે. જ્યારે મતિ અને શ્રુત જ્ઞાન રૂપીને પણ જોઈ શકે અને અરૂપને પણ જાણી શકે. આ અવધિ જ્ઞાન 6 પ્રકારના બતાવ્યા છે કે અનુગામિક મીન્સ ગમે ત્યાં જાય સાથે આવે અવધિ જ્ઞાન, જગ્યા બદલે તો એ સાથે આવે. અને અનુગામિક કે છે કે જે જગ્યા ઉત્પન્ન થયું હોય ત્યાંથી એ છોડી દે તો પછી અવધિ જ્ઞાન જતું રહે. પછી વર્ધમાન એટલે એ જીવનું અવધિ જ્ઞાન વધતું જાય. એના આત્માના અધ્યવસાયને લીધે કર્મ તૂટતા જાય ને અવધિ જ્ઞાન વધતું જાય, એવું વર્ધમાન. ને હાયમાન એનું અવધિ જ્ઞાન ઘટતું જાય. એ જેવું કર્મો એવા વધતા જાય, કર્મોના આવરણ. પછી કે પ્રતિપ્રાતિ કે એટલે
કોઈ એકાદ દ્રશ્ય દેખાય, એકાદ પદાર્થ દેખાય અને કશું આશ્ચર્ય જેવું દેખાય અને પછી જતું રહે, એટલે એક જ વખત દેખાય એવું જ્ઞાન. અને અપ્રતિપાતી એટલે આવ્યા પછી જાય નહીં એવું અવધિ જ્ઞાન. પણ આ અવધિ જ્ઞાન નારકી અને દેવલોકના જીવોને હોય છે, જેમને જન્મથી જ હોય છે. જન્મથી. પણ મનુષ્યમાં કોક મનુષ્ય પાસે આવું અવધિ જ્ઞાન થયું હોય તો એક અવધિ જ્ઞાન અને કેવળ જ્ઞાન સુધી રહે. મનુષ્યમાં બહુ ઓછા ને આવું અવધિ જ્ઞાન થઈ શકે છે. કારણ કે સમકીર્તિ જીવ હોય એના જ્ઞાનને અવધિ જ્ઞાન કહેવાય, પણ મિથ્યાત્વી હોય તો એના જ્ઞાનને વિભંગ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એટલે નારકીના જીવોને વિભંગ જ્ઞાન હોય છે. નારકીમાં મોટા ભાગના વિભંગ જ્ઞાન વાળા જ હોય, એટલે ઊંધું સમજે. કોઈ પણ પદાર્થને જોયું એનું જ્ઞાન હોય પણ એ ઊંધું સમજે. ત્યારે દેવલોકમાં પણ બંને હોઈ શકે. ધમકીથી જીવ હોય તેનું જ્ઞાન જ અવધિ જ્ઞાન કહેવાય, કારણ કે સાચું સમજી શકે, સાચું સમજાવી શકે, સાચું જોઈ શકે. પછી ચોથું જ્ઞાન છે મનોપર્યવ જ્ઞાન. એટલે આ જ્ઞાન અઢીદ્વીપના સંઘની જીવોના મનના ભાવોને જાણી શકે. અઢીદ્વીપ એટલે જ્યાં મનુષ્ય છે, મનુષ્ય લોક છે, જંબુદ્વીપ, કાર્તિકન ને પુષ્કર દ્વીપ. એટલે એ જીવોના મનના ભાવોને જાણી શકે આ મનોપર્યવ. પણ આ જ્ઞાન ફક્ત લબ્ધિધારી જે મુનિ હોય, સંયમી મુનિ, એને જ થાય. અને દરેક તીર્થંકરો જ્યારે દીક્ષા લે ત્યારે તેમને આ મનોપર્યવ જ્ઞાન હોય છે, તરત પેદા થાય. અને આ જ્ઞાન પણ બે પ્રકારના હોય કે રુજુમતી એટલે જ્ઞાન નાશ પણ પામે, થોડાક સમયમાં નાશ પણ પામે. પછી વિપુલમતી જ્ઞાન હોય એ જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાન હોય, નિર્મળ જ્ઞાન હોય, અને એ જ્ઞાન નાશ પામતું નથી. અને આવા જ્ઞાન વાળાને કેવળ જ્ઞાન થાય. પણ આ મનોપ્રવેગ જ્ઞાન એ પણ રૂપી પદાર્થોને જ જાણી શકે, અરૂપીને ના જાણી શકે. અને છેલ્લું છે કેવળ જ્ઞાન. આ જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ અને સહાયક છે. એટલે પહેલાના ચારે જ્ઞાન સહાયક સામિક છે, વધી શકે, ઘટી શકે, ઓછે વધે પણ ખરું, ઘટી પણ શકે. જ્યારે કેવળ જ્ઞાન છે એક સહાયક છે, અને તે આવ્યા પછી જતું નથી. એટલે આત્માનું આયુષ્ય હોય ત્યાં સુધી બહુ કેવળ જ્ઞાન હોય, અને આયુષ્ય પૂર્ણ થાય પછી એ સિદ્ધ લોકમાં પહોંચી જાય, ત્યાં પણ કેવળ જ્ઞાન સહિત અનંતકાળ સુધી રહે જીવ. શાશ્વત સિદ્ધ થઈ જાય ત્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન સાથે રહે. એટલે જેટલા સિદ્ધો છે બધાને અત્યારે પણ કેવળ જ્ઞાન છે, અને આ કેવળ જ્ઞાનના કોઈ ભેદ નથી. એટલે આ થયા 5 જ્ઞાન. કે સંદીપભાઈ આગળ જાઓ. Hey, just one question there. Yeah. I didn't understand. मेरे को मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में डिफरेंस समझ में नहीं आया. I know कि मति ज्ञान अपन पैदा होते हैं, हर आदमी मति ज्ञान से पैदा होता है. बट शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान में क्या डिफरेंस है? शुद्ध ज्ञान में बोलने की जो शक्ति है और सुनने की जो शक्ति है वो शुद्ध ज्ञान है. मति ज्ञान जो बुद्धि और मन से होता है, जो पदार्थ का निश्चय हम करते हैं, कोई भी पदार्थ क्या है वो हमारी बुद्धि और मन से जो डिसाइड करते हैं वो मति ज्ञान है. और उस पदार्थ को हम दूसरे को बता सकते हैं. मैं एग्जांपल देता हूँ अच्छा. कि ऐसा नहीं कि जो स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं वो शुद्ध ज्ञान है, वैसा नहीं है. मैं वो समझ रहा हूँ. वो भी आता है उसी वो में. भी आता है ना. मैंने बोला ना कि बोलने की, सुनने की और बताने की शक्ति तो मति ज्ञान से आती है ना. मति ज्ञान से हम जानेंगे और श्रुत ज्ञान से बताएंगे. आपको समझाता हूँ कि अपन कहीं से पास हो रहे हैं, एक मस्त खुशबू आई तो अपन ने डिसाइड किया अरे ये तो रात रानी की महक है, रात रानी के फूलों की महक है. बराबर, वो समझ में आ गया अपने को ये रात रानी के फूल की महक है.
दैट इज मति ज्ञान। अभी आप दो जन साथ में जा रहे हैं और दूसरा पूछता है कि क्या खुशबू आ रही है यार, आप उसको समझाते हैं कि ये रात रानी के फूल की महक है, वो रातों को ही खिलता है, ऐसे इसकी महक मदहोश करने वाली है, ये है वो है, जो आप उसको समझा सकते हो। आपको उसको एक्सप्लेन करने की खुशबू दोनों को आई, मति ज्ञान दोनों को हुआ, पर उसको ये नहीं हुआ कि ये किस चीज की खुशबू है। आपका बच्चा आपके साथ उंगली पकड़ के चल रहा है, उसको खुशबू आई, उसको पता नहीं है व्हाट इज रात रानी। तो वो पूछता है कि पापा खुशबू आ रही है ना कुछ, तो आप उसको समझाते हैं कि ये रात रानी के फूल की महक है, वो ऐसी होती है, वो रात को ही खिलता है, इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग सुगंध होती है, उससे ये होता है। मतलब आप उसके बारे में आपके पास जो काफी जानकारी है या उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो आपका सूतक ज्ञान। जो बोलने की शक्ति है और फिर आपको सुनने की शक्ति। फिर आपने भी कभी रात रानी देखा नहीं है, समझो, चलो कि भाई वो कैसे, तो वो आप घर जाके उसके बारे में सोचते हैं कि साला ये रात रानी के फूल के बारे में मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है, तो आपने गूगल किया समझो, और जो पढ़ने को आया ये प्रदेश में पाए जाते हैं, ये ऐसे है, ये वो इतने दिनों के बाद उसके ऊपर पुष्प बैठते हैं, ये सारा मतलब उसका वो बायोलॉजिकल ज्ञान ले लिया समझो। दैट इज ऑल्सो सूतक ज्ञान। पढ़ते भी है, समझा भी सकते हैं, दैट इज सूतक ज्ञान का स्वरूप सब। ओके, क्लियर? ओके, अपन 20वीं कथा में थे। मध्यम्य मंचम्य फलते गणपति वो परिभोग के बियन निगम। तो उपभोग और परिभोग एक बार यूज होती है, एक कुछ चीजें बार बार होती है। उसमें अपन डिटेल में जा रहे थे कि 22 अपक्ष और 32 अनंत काय, वो चीजों को अपन समझ रहे थे। तो अपने 22 अपक्ष की बात चल रही थी, तो उसमें अपन ने देखा कि 1 से 5 में 5 उदुम्बर, वर, पिपला, उम्रा, पीपर और कोकोडुम्बर, उसके फल जिसमें बीज मच्छर जैसे दिखने वाले या इस तरीके के होते हैं, वो अपक्ष है। फिर 4 महाविगई अपन ने देखी, मांस, मदिरा, मध और मक्खन, उसके बारे में भी अपन ने डिटेल से बात की। तो हो गया हिम, बर्फ। फिर विष दवाई वगैरह में या उसकी मात्रा से लेते हैं, उससे ज्यादा लेना, या वो अपक्ष इसलिए कि उससे ज्यादा लेना या उसकी मर्यादा चूक जाना वो मौत का कारण भी हो सकता है, इसलिए उस त्यागने योग्य चीज है। फिर करा, जो ओले गिरते हैं, वो ओले की बात की, तो 12वां हो गया ओला। फिर 13वां अपन ने लिया, सर्व प्रकार की मिट्टी खाने में आती है, तो वो सब अपक्ष है। फिर 14वीं बात आई रात्रि भोजन की। रात्रि भोजन भी अपन ने डिटेल से देखा कि उसमें हिंसा आदि है, where there is a darkness there are germs। तो वो रात्रि होने के पश्चात और रात में सब जगह सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और इस प्रकार से रात्रि भोजन जैनों में सर्वथा निषिद्ध है, और आयुर्वेद की दृष्टि से या अभी तो मेडिकल साइंस की दृष्टि से भी इतने जल्दी खा लो, खाने और सोने के बीच में इतना फासला रखो, तो वो सारा बताया ही है समझो। खाने और सोने के बीच में 4 घंटे का फासला रखो, ऐसा आयुर्वेद समझाता है, या अभी का मेडिकल साइंस भी समझाता है, या कुछ फैमिलियों की परंपरा है। अपन चाइनीज लोगों में भी देखते हैं कि वो जल्दी से खाना खा लेते हैं शाम के वक्त, तो वो जो ट्रेडिशनली फैमिली वैल्यूज में आया है, तो वो रात्रि भोजन का एक तरीके से त्याग हो गया। उसके बाद अपना थोड़ा प्रिसाइज है कि उसको पानी भी अपने को नहीं पीना है तो मर्यादा से पीना है, पचखान करना है। वो पचखान सबसे बड़ी देन है जैन शासन की। जो भी करते हो त्याग, वो त्याग को पहले से एक्सेप्ट करके त्याग करना, वो पचखान होता है। और पचखान की सबसे
बड़ी वैल्यूएशन जैन शासन में है। जो आप पाप नहीं करने वाले उसका पछतान करना, उसको छोड़ देना, उसका त्याग करना, तो वो उससे जो दोष आने वाले हैं इनकमिंग, वो सबको रोकना है। तो अपन ने रात्रि भोजन की बात की, उसके बाद आया बहुबीज। बहुबीज में भी अपन ने देखा कि रिंगण आदि जो ठसोठस भरे हुए बीज है उसका हमें निषिद्ध है या उसे हम अपक्ष गिनते हैं। और उसमें दाड़म तिंडोरा वो सबका आया कि उसमें कंपार्टमेंट वाइज बी होते हैं। तो कंपार्टमेंट वाइज में इतना खींचोखींच भरा हुआ नहीं रहता है, उसके सबके लिए एक स्पेस होती है, इसलिए वो बहुबीज में नहीं आते हैं। फिर अपन ने देखी अनंत काय की बात, जो कंदमूल वगैरह है, आलू, प्याज या लहसुन आदि, तो वो अनंत काय भी अपन डिटेल में भी देखेंगे आगे जाके, क्योंकि अब अपने को 32 अनंत काय भी देखना है। तो 22 अपक्ष और 32 अनंत काय में अनंत काय को अपन बाद में डिटेल से समझेंगे। फिर आता है ये 16 हो गए, 17वां आता है बोल अथाना, जो अपन जिसमें अपना रेगुलर यूज है उस चीज का, और अपने जैसे मक्खन का है ना, उसी तरह अपन बोल अथाने का मैक्सिमम यूज करते हैं। और उसमें जो जीवों की उत्पत्ति उसे हम समझते नहीं, उसको समझते हैं पहले। एक तो नींबू, बीला, केरी, गुंडा, सब चीजों का अचार बनता है। जो अचार बनता है ना, आपको शायद आपकी मतलब पुराने जमाने में जो बनता था अपने गांव वगैरह में, आपको याद हो तो, आपकी मम्मी बनाती थी या दादी बनाती थी, आपको याद हो तो, उसमें समझो एक आम के अचार की बात करते हैं, तो आम उसे 3-4 दिन तक वो नमक के पानी में रखते थे, उसके बाद उसको 3-4 दिन तक कड़ी धूप में सुखाते थे, और वो ऐसे प्लास्टिक जैसा हो जाता था ना जब आम 3 दिन में, मतलब ऐसा लिटिल बिट फ्लेक्सिबल और एकदम वो हो जाता था सूखा। उसके बाद उसमें मसाला वगैरह डाल के रखते थे और उसको तेल वगैरह में डुबो के रखते थे। वो जो परंपरा थी ना, वो एक तरीके से बना हुआ अथाना ही अपन यूज कर सकते हैं। अभी अपन जो बॉटल वगैरह में लाते हैं ना, वो फटाफट बना के पैक करके निकल जाता है, उसको नहीं धूप दिखाते हैं, नहीं उसको सुखाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें पंचेंद्रिय तक के जीवों की उत्पत्ति होती है। जो अपन होटल में या बॉटल में जो अचार लाते हैं और खाते हैं, वो सबसे बड़े पाप का कारण है। और वो जो उसको अपन बोल अथाना बोलते हैं, वो 3 दिन तक ही चलता है। आज बना हुआ आम का अचार है, उसमें पानी नहीं डाला है, तो 3 दिन से ज्यादा नहीं चलता है, और अपन उसको साल भर खाते हैं। तो वो अपक्ष चीज है और वो अवॉइड करने जैसी चीज है। आप घर के जो अचार बने हुए, दादी के हाथ के बने हुए अचार है, और इसका कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको थोड़े दिन छोड़ दोगे ना, उसमें तेल वगैरह नहीं है, तो उसके ऊपर पूरा मतलब लेयर आ जाता है ब्लैक कलर का। आप कभी नोटिस किया हो तो, वो जो जीवों की सतत उत्पत्ति चालू रहती है, और उसमें पंचेंद्रिय तक के जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए बोल अथाना, फिर जलेबी वगैरह के लिए जो आटा बना के रखते हैं, वो ओवरनाइट रखते हैं ना अपन होटल में। जो भी मतलब होटलों का निषेध अपने को बताया गया है कि जाहिर प्लेसेस में खाना नहीं चाहिए ये होटल वगैरह का। इसका कारण ये है कि वो वासी भी यूज करते हैं, जिसमें आटा लाते हैं। वो आटा लाने के लिए वो लोग उसको 1 दिन पहले भिगो के रखते हैं, और
उसका जो बैटर वगैरह होता है, अभी तो रेडीमेड बैटर लाते हैं, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, पता नहीं है, वो सब अपक्ष है। जलेबी के लिए जो मिक्सचर बना के रखते हैं ना, तो 1-1.5 दिन उसको रखते हैं, उसके बाद उसमें आटा आता है, उसके बाद ही उसकी अच्छे से निकलती है जलेबियाँ। तो ये सारे अपक्ष चीज है। तो उसको संयमित तरीके से बनाना चाहिए। पहले घरों में सारी चीजें बनती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं बनता था, लेकिन वो सुबह जाग के अर्ली भिगो के रखते थे। हम लोग कुछ लोग कल कठोल बनाना है तो आज रात को ही भिगो के रख देते हैं। इवन सारे जैन फैमिलियों में या कभी बहुत सारे लोगों में ये मतलब उसमें कोई समझ ही नहीं है कि रात को भिगोया हुआ वासी हो जाता है, और वासी मतलब अपक्ष। तो वो बोल अथाना और ये आथा लगने वाला बैटर वगैरह वो जीवोत्पत्ति का कारण है। फिर घोल वड़ा, अपन उसको बोलते हैं द्विदल आहार। दही और दूध, उसमें अपन दाल वगैरह जो मिक्स करके खाते हैं वो जीवोत्पत्ति का कारण है। और या तो खाते खाते दाल भी है और छाछ भी है, दाल भी है और दही भी है, कठोल भी है और दही भी है, तो उसको मिक्स करके खाते हैं। और एस्पेशली दही वड़े, उसमें अपन दही और दाल का मिक्सर करते हैं तो निषिद्ध है। वो आरोग्य की दृष्टि से भी बहुत हानिकारक है। उससे स्किन डिजीज वगैरह, वो तो प्रूव्ड चीज है कि उससे स्किन डिजीज वगैरह भी होते हैं, वो सफेद दाग वगैरह भी जो होता है, तो वो ये द्विदल या उसको द्विदल भी बोलते हैं, तो वो फूड के हिसाब से होता है। उसमें जो अन्न पीसने से उसके 2 टुकड़े होते हैं माप सर के, जैसे अपनी दाल वगैरह है तो वो क्या है, पूरा मूंग होता है, उसको सब पीसोगे तो उसके 2 टुकड़े होंगे, तो वो उसको दाल बोलते हैं। जिस चीज का 2 पीस होता है वो सारे कठोर, उसको दही या कच्चे दूध के साथ खाना निषिद्ध है, तो आरोग्य की दृष्टि से भी निषिद्ध है। और उसमें एक चीज कोई दलील करने के लिए बोलता है कि चलो सींग है, सींग दाना है, उसके भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। पर अपन ने आगे भी देखा है कि वो जमीन में उगता है और ऑयल बेस्ड होने की वजह से वो भक्ष्य है। इसी तरह इसमें भी मिक्सिंग में भी ऑयल बेस्ड होने की वजह से उसमें जो दाल वगैरह का जो गुण होता है वो नहीं होता है। ये सींग के बिना सारे जिसके 2 टुकड़े होते हैं वो सारे दान दही के साथ या कच्चे दूध के साथ नहीं मिक्स करने चाहिए। इवन ज्यादा बोले तो मुंह क्लीन करके उसके बाद ही छाछ पीनी चाहिए। दूसरी बात, उसके बर्तन, आपने समझो मैंने दाल चावल खाए और मेरे बगल वाले ने खाली दही और रोटी खाई, दोनों का आहार भक्ष्य हो गया, खाने जैसा हो गया। पर मेरी थाली और उसकी थाली सिंक में भी अपन साथ में मिलाएंगे ना, तो अनंत जीवों की उत्पत्ति चालू होगी। उसका दही वाला और मेरा दाल वाला, दाल का कटोरा उसकी दही वाली प्लेट में रख दिया ना, तो भी जीवों की उत्पत्ति होगी। जैन शासन इतना माइन्यूट देखने वाला है कि खाने के बाद बर्तन में भी उसका अलग से धोना चाहिए, इसका अलग से धोना चाहिए। तो ये वितरागों का, ये केवल ज्ञानियों का जो धर्म है ना, ये इतना माइन्यूट है। हर चीज में
और अपन सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा तो नहीं बताया था, उनके जमाने में तो लाइट नहीं होगी, उनके जमाने में तो वो नहीं हो। वो अपनी सोच बहुत छोटी है। ज्ञानियों ने बहुत लंबे सोच के बताया हर चीज को, हर जीवन व्यवहार को, कि आप कितना फॉलो करते हो वो आपके ऊपर है, आपके क्षयोक्षम के ऊपर है, या आप कितना बिलीव करते हो वो आपके क्षयोक्षम पे है। लेकिन बहुत ही प्रिसाइज सब कुछ बताया। तो ये हो गई गोल वड़ा, मतलब दही वड़ा वगैरह में जो दही और कठोल का मिश्रण, और वो चीज अपन इजीली अवॉइड कर सकते हैं। श्रीखंड के साथ ये ढोकले, वो सब अपन अवॉइड कर सकते हैं और करना चाहिए। दूसरी बात, जो समझो जिसका 2 फाड़ा हो रहा है, उसके पान भी है ना, वो समझो मेथी है, तो मेथी का पान भी है ना, उसको भी दही गरम किए बिना मिक्स करना, वो सेम हो गया, द्विदल बन जाता है। और उसमें एक प्रोसेस है, उसको दही वड़े में दही डालने का एक प्रोसेस है। सारे जैन घरों में सब औरतों को मालूम रहता है कि दही को अपनी उंगली डालो तो उंगली को गरम लगे ना, वहां तक दही को गरम करने के बाद कठोल के साथ खा सकते हो। दही को ऐसे निकाल देते, उस तरीके की गर्मी आने के बाद इसको यूज कर सकते। तो ये हुई गोल वड़ा की बात। फिर 19वां अभक्ष है घृतांक। वो जो पदार्थ अपनी वृत्तियों को उत्तेजित करता है, अपनी सोच को उत्तेजित करता है, अपने उस प्रकार के जो भी खुराक है, वो सारे अपक्ष बनते हैं। एस्पेशली रिंगण, वो उत्तेजक होता है, उससे अपने मन की गति उत्तेजना पाती है। या लहसुन आदि है, काफी रिलीजन में, काफी ट्रेन में समझो स्वामीनारायण ये है, और सारे ये तामसिक खुराकों को त्याग करते हैं, क्योंकि वो वृत्तियों को बहकाने वाले होते हैं, इसलिए उसको भी त्याग करते हैं। तो घृतांक जो आहार होता है वो भी त्याजने योग्य है। फिर अजाणु फल, कुछ जगह अपन जाते हैं और जंगल वगैरह से पहले तो वो चल के जाने वाले थे, तो जो फल आप पहचानते नहीं हो उसको खाना निषिद्ध है, क्योंकि उसमें काफी सारे ऐसे जहरी फल भी होते थे जंगल वगैरह में, और वो शरीर को नुकसान करने वाले थे। किसी से खुजली आ जाती थी, ऐसे काफी फल पहले की लाइफस्टाइल में थे। अभी वो तो अपने को रहा नहीं है, कि अनजान तो कुछ रहा नहीं है, और अनजान को हम हाथ भी नहीं लगाते अभी तो, क्योंकि पैसा चुका के लेने का है ना, तो अनजान को क्यों हाथ लगाएंगे अपन। सुपरमार्केट में जाके वो लाके पैक किया है उसने, तो वो अनजान रहता ही नहीं है, फिर आने योग्य चीज ही आती है काफी जगह। तो इसलिए वो, और कभी आप जंगल से निकल रहे हो या कुछ कहीं से घूमने गए हो और एक देखो लाव चखते हैं, ऐसा कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, अरे ये लाल कलर का मस्त फल है, लाव चखते हैं, इसको क्या बोलते हैं। गूगल करेंगे फोटो लगा के, पर नहीं मिलेगा तो फिर वो अपन एक ट्राई करते हैं, चख लेते हैं, वो निषिद्ध है। वो अनजान फलों को खाना निषिद्ध है। कुछ में मुंह सूख जाता है, कुछ में एलर्जी हो जाती है, कुछ में दांत गिर जाते हैं, इस तरीके का पहले के टाइम में फल वगैरह रहता था, तो वो नहीं खाना चाहिए। फिर आता है 21वां उच्च फल, जिसमें
खाने का कम हो और फेंकने का ज्यादा हो, जैसे जाम्बू, बिल्ला, चरगो भी तुच्छ फल है, जिसमें जो सींग आती है ना सर, वो भी तुच्छ फल में आती है कि उसमें खाने का ज्यादा कम रहता है। और सीताफल, वो सब में खाने का कम है और फेंकने का ज्यादा है, इसलिए उसको भी त्याग कर। और फिर वो खाने में भी ऐसे खाते हैं कि सारा जो पोर्शन होता है ना, जूठा होता है, अपने मुंह से जूठा होता है। उसके बाद अपन सींग का वो जो पार्ट फेंक देते हैं, या सीताफल के दाने, मोर के खलिए सब फेंकने योग्य होते हैं, तो वो जूठा करके फेंकते हैं। तो 48 मिनट के बाद उसमें भी जीवोत्पत्ति होनी ही होनी है। और कम खाते हैं और ज्यादा फेंकते हैं, इसलिए उसको निषिद्ध किया है। तुच्छ फल, तो तुच्छ फल बोलते हैं। और 22वां अवध से है चलित रस। चलित रस में कोई भी पदार्थ जिसका वर्ण, गंध, रस और स्पर्श बदल गया है, वो अपक्ष है। जैसे हमने वासी भात रखा है, 20 दिन, 15 दिन या 5-10 दिन हो गए, और मावे की मिठाई है या सब ऐसा है, 2-3 दिन बाद का दही एकदम खट्टा हो गया, 2 दिन बाद का, तो सारे जिसके रस बेसिक थे वो बदल गए। जिसका रूप बेसिक जो था, अच्छा येलो लग रहा था, जो एक मिठाई का टुकड़ा, उसके ऊपर व्हाइट कलर की परत आ गई है या जरा सा काला सा परत आ गया है, उसमें वो अपक्ष हो गया। तो रस, गंध, उसकी स्मेल बिगड़ जाती है। अपन ड्राई फ्रूट वगैरह में भी जिसका टेस्ट चला जाता है, खोरा हो जाता है, उसको हम गुजराती में खोरा बोलते, खोरू थे से, मीन्स के उसका टेस्ट मुंह बिगाड़ने वाला हो गया। जो काजू अपने को अच्छा लगना चाहिए था, वो मुंह बिगाड़ने वाला हो गया। तो सारे जो होते हैं, जिसका टेस्ट बदल गया, रंग बदल गया, रूप बदल गया, उसको चलित रस बोलते हैं। उसका जो बेसिक रस था वो चलित हो गया है, मुंह हो गया है। तो इस तरीके से वो चलित रस भी अपक्ष में आता है। अभी चावल समझो, आज चावल बढ़ गए थोड़े, तो उसको अपन दूध में डुबो के उसको मेलवन लगा के दही बनाते थे, वो दूसरे दिन चलता है। और पूरा दूध में डूबा हुआ चावल और उसको दही बनाया हुआ, तो वो दूसरे दिन चलता है, क्योंकि वो उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। और दही बनना एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, उसमें जीवों की उत्पत्ति रोकता है, तो वो बासी भात नहीं रहता है, दूसरे दिन चलता है, पर तीसरे दिन वो नहीं चलता है। फिर 2 दिन वाला दही हो गया, तो उसको छाछ बना दी समझो, तो एक और दिन चलता है। फिर अपन ने भाकरी वगैरह बनाया, पराठे वगैरह बनाया, वो अपने को लगता है कि सूखा है, लेकिन थोड़ा सा भी वो वाटरी पार्ट रहता है और थोड़ा ऐसा हिलने डुलने वाला रहता है, तो वो दूसरे दिन वासी हो जाता है। खाखरा बना दो। खाखरा बनाई दे। हाँ, कड़क भाकरी बनाई है समझो, दूध के मोहन से बनाई हुई है। मतलब हमारे वहाँ ऐसे भी भाकरी बनती थी समझो, 4-6 दिन के लिए लेके जाना है तो उसको पानी डालते ही नहीं थे, दूध डालते, तो दूध डाल के बनाई हुई और कड़क, जिसमें वाटरी पोर्शन नहीं रहता है, एकदम क्रिस्पी बनती है, तो ऐसी भाकरी भी चलती है। फिर थेपले बनाते हैं, तो उसको पानी के बदले छाछ में या इस तरीके से बनाया तो 1 और दिन 2 दिन चलता है। इसलिए सारी चीजों में फिर वो अपने को वो तो मालूम है कि लोट वगैरह का भी काल रहता है,
चातुर्मास में 15 दिन का ही काल रहता है, तो उसके बाद परिक रस हो जाता है, वो उसका टेस्ट ऑब्वियसली बदल जाता है। सारी चीजों पे जो अपन एक्सपायरी डेट देखते हैं ना, वो सेल्स के हिसाब से एक्सपायरी डेट लगाते हैं, लेकिन अपने यहाँ एक्सपायरी डेट का कंसेप्ट था कि आज का बनाया हुआ खाकर चातुर्मास में 15 दिन ही चलता है, और 15 दिन के बाद अंदर एक डब्बे में 2 खाकरे जूने पुराने पड़े हैं, उसके अंदर नए 100 खाकरे बना के भी नहीं रख सकते, उसका संयोग भी नहीं कर सकते थे। उसको एक तरफ निकाल दो और पूरा डब्बा क्लीन करके उसमें नया बनाया है तो आज का बनाया हुआ उसमें डालो। अपन वो मिक्सिंग वाला भी प्रोसेस, मतलब अपन समझने की कोशिश करेंगे तो आहार विहार में इतना माइन्यूट अपने को ज्ञान दिया हुआ है, तो वो लोट वगैरह का भी जो काल रहता है उसके उपरांत खाना अपक्ष है। और अभी अपने पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं तो कुछ चीजों में अपन कर रहे हैं, पर इट इज अपक्ष, 100% अपक्ष। तो वो आपको तप वगैरह करना है तो नहीं ही खाना चाहिए, एटलीस्ट तप वगैरह में उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि तप में अपन सचित का कुछ त्याग करते हैं, अपक्ष का त्याग करते हैं, वो जरूरी है, नहीं तो अपना तप का मजा नहीं है। इसलिए अपक्ष वगैरह का त्याग करना चाहिए। और आगे आते हैं 32 अनंत काय। अपन खाली नाम से ले लेते हैं क्योंकि अपन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी नो, और काफी चीजें हमारे खाने में नहीं भी आती है आजकल, तो इसलिए अपन खाली नाम से देख लेते हैं। सर्व प्रकार के कंद और सुरन, सुरन ने इंग्लिश में શું કહેવાય ભાઈ? यम સુરણના यम यम શું કહેવાય? YAM यम હા, યામ કહેવાય. યામ. એ અપક્ષ છે, એટલે અનંતકાય છે. સોરી, આપણે હવે 32 અનંતકાયની વાત કરીએ છીએ, તો એ અનંતકાય છે. વજ્રકંદ એક પ્રકારનો કંદ આવતો હશે કે જે જમીનમાં નથી ખપતી અને વાપરીએ છીએ. પછી લીલું આદુ, अदरक कंदमूल है, उससे बनी हुई सौंठ को अपन यूज कर सकते। फिर લીલો કચુરો એક પ્રકારના પેલા આપણે આમલીનું જે ફળ હોય ને એને લીલું હોય ને ત્યારે એ નથી ખવાતું, અને સૂકી થઈ જાય આમલી પછી ખવાય છે એ રીતે. પછી શતાવરી એ પણ અનંતકાય છે. પિરાલિકા જમીનમાં થતું કોળું, જમીનની અંદર થતા પમ્પકિન જેવું કોઈ પદાર્થ હશે. પછી પમ્પકિન જ કહેવાય. પમ્પકિન. હા, પછી પમ્પકિન બહાર પણ થાય છે. બહાર પણ થાય ને, જમીનમાં થતા હશે તો એ નહીં, આપણે કોઈ દિવસ નેવર કમ અક્રોસ. પછી કુવાર એટલે જે કુવાર પાઠો હોય એટલે હા એ. પછી થોર, એલોવેરા જ કહેવાય ને. હા એટલે કાઇન્ડ ઓફ. પછી થોર એટલે જે કાંટાવાળું પેલું ઝાડ હોય કે જેમાં દૂધ નીકળે, એટલે જેની વાડ બનાવેલી હોય, થોર કહેવાય. થોર એ થોર. પછી ગળો, લસણ. પછી એક વાંસ કારેલા છે કે જે ખબર નહીં વાંસની ઉપર કારેલા જેવા ફળ ઉગતા હશે. આપણે વી આર નેવર કમ અક્રોસ મેની થિંગ્સ. જે ગાજર, લૂણી, પદ્મિની કંદ, ગરમર, કુંપળો, થેક, લીલી મોથ, ભમણ છાલ, ખીલ્લુડો, અમૃતવેલ, મૂળા, બિલાડીનો ટોપ
મેક્સિમમ અહીંયા વપરાય છે અત્યારે. આ બધા ચાઇનીઝ ફૂડમાં બધે વાપરે મશરૂમ મશરૂમ. એ અનંતકાય છે. એ જમીનની બહાર થાય છે પણ અનંતકાય છે. પછી જેમાં मशरूम में क्या हुआ संदीप भाई, अनंत का मतलब? वो जो कंदमूल की कैटेगरी में आता है ना, अनंत का है मतलब जिसमें 100 के नोक के बराबर में भी ठास के जीव भरे हुए हैं. अनंत जीव है, अनंत जीव काय. जैसे काय भी शरीर. जिस तरीके से आलू प्याज का निषेध है, उसी तरह मशरूम का निषेध है. एक आलू प्याज तो जो जमीन के अंदर होते हैं, लेकिन मशरूम तो ऊपर होता है ना. तो इसीलिए स्पेसिफिकली बताया है, जमीन के ऊपर होता है, लेकिन स्पेसिफिकली इसलिए बताया है कि वो तो उसमें ज्यादा जीव है. उसमें ज्यादा है. जैसे अपन ने ऊपर होते हुए बैंगन को देखा, समझो बैंगन तो ऊपर झाड़ पे वेल पे होता है, तो भी उसमें उसका स्पेसिफिक नाम दिया है कि भाई ये अनंत का है, बहुबीज है, इसलिए नहीं खाना है. इसी तरह इसका भी मशरूम जो अपन ज्यादा यूज करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि बहुत हेल्दी फूड है, ये है, वो है अंकुरित कठोर. क्या बोलते हैं? સ્પ્રાઉટ. वो फणगाला स्प्राउट स्प्राउट्स किसको कहवाए? હા સ્પ્રાઉટ. स्प्राउट. સ્પ્રાઉટ. वो हेल्दी फूड है, ये है, वो है, पर उसमें जमीन के बाहर और मूल निकला हुआ है, समझे? उसमें एक बड़े वृक्ष बनने का पोटेंशियल आ गया है, या एक बड़ा पौधा बनने का पोटेंशियल आ गया है बाहर भी. तो वो अनंत काय में आता है. और एक बात, वो एक दिन में तो उगता नहीं है. सुबह भिगोया शाम को तो उगता नहीं है. उसको 2 दिन अपन भिगो के उसको तो गीले कपड़े में या जो भी उसका प्रोसेस होगा ऐसे रखते हैं. इसका मतलब वो वासी भी हो गया, और उसके बाद उसको उसमें रूट्स आ गए, तो मतलब वो उसके ऊपर पौधे जैसा ही आ गया है, इसलिए वो अपक्ष है. जो अपन बात नॉर्मल अपने रूटीन में आता है ना खाने में, और वी कम अक्रॉस उसकी बात ज्यादा करते कि उसमें समझने जैसा है कि भाई चलो ये वी आर ऑलवेज कम अक्रॉस. ये फंगा है, वो कठोर, ये मशरूम, ये लीली हल्दी, लीला गाजर, लीला अदरक, वो सब अपन नॉर्मली आते हैं, इसलिए उसको समझते हैं. પાલક શાક, કુકરવા એટલે જંગલી વેલો હોય છે, એ પણ અનંત ખાય છે. પછી કુણી આંબલી, હા આમાં કુણી આંબલી આવે છે. કુણી આંબલી એટલે જેમાં કચુકો બંધાયો નથી એવી આંબલી. એટલે એ તો હવે અહીંયા તો કંઈક ખાવાનું થતું નથી, પણ એ ગામડામાં જયારે નાના હતા ત્યારે રમતા આંબલીના ઘોડા સાંભળી આવતી હતી ત્યાં જ ને. હે ઘોડા સાંભળી કે એવું કહેતા હતા ને. ઘોડા આંબલી એ અલગ વસ્તુ છે. આ કુણી આંબલી, કુણી આપણે આંબલીના ઝાડ પર તોડ લેતા. આંબલીના ઝાડ પરથી તોડીને કુણા ચાવીને, એમાં ખટાશ પણ ના હોય એવી, એટલી સ્ટ્રોંગ ખટાશ ના હોય, અને કચુકો બંધાયો ના હોય. એટલે એનો જે કચુકો એટલે એનો ગોટલો થાય, જીવ છે. હા, એ બંધાયો ના હોય, એટલે એ અનંત થાય છે. એટલે અને આલુ એટલે રતાળુ, ગાજર, બટેટા, એ બધા. પિંડાળુ એટલે ડુંગળી વગેરે. કુણા ફળ એટલે એકદમ અત્યંત કુણા જે ફળો હોય, કુમળા, એ પણ અનંતકાય છે. એટલે આ અનંતકાય અને ગંધમાલ્ય વસ્તુઓ, એટલે કે જેનામાં સુગંધ હોય, અત્તર, કસ્તુરી, એનો ઉપભોગ, એ પણ એનો વિવેકપૂર્વક કરવાની વસ્તુ છે. એટલે આ થઈ આપણી
22 અપક્ષ અને 32 અનંતકાયની વાત. આ ઘણો ડિટેલ સબ્જેક્ટ છે, એને આપણે ક્યારેક હજી એકવાર વધારે ડિટેલથી લેવો જોઈશે, કારણ કે એમાંથી એવોઇડ કરવા જેવી 5, 15, 25 વસ્તુઓ છે જે અથાણા, બોળ અથાણા છે, પછી આ એ બધાનો જે આપણે સમજ વગર ખાઈએ છીએ અને સમજીને એવોઇડ કરી શકીએ એમ છીએ કે જે ન ખાવું એનાથી આપણને કંઈ ફરક નથી પડતો, એવી વસ્તુઓ છે. એટલે એને આપણે વધારે કોઈક વાર ઓર ડિટેલમાં સમજશું. હવે આ બધું ન ખાવ તો તમારે એમને ઉપવાસ થઈ જાય. ના, એટલે એ ત્યાગવા યોગ્ય છે. ઓર કેટલું કરી શકે કારણ કે કેટલી જીવ હિંસા કરો તમે, પણ આ ત્યાગવા યોગ્ય વસ્તુ છે. કદાચ હું ઘણી વસ્તુઓનો ત્યાગ ન કરતો હોય, પાછા મારા કાન નહીં પકડતા કોઈ. ના ના, એ તો આપણે ખાવામાં આવી જતું હોય છે કેટલી બધી વાર. आप बात तो क्या करते थे हाँ? ये जो शास्त्रोक्त बातें समझने योग्य है, अगर समझेंगे तो छूटेगा. ये आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा को समझेंगे तो आत्मा को पाएंगे. इसी तरह खाने पीने में जो नहीं खाने योग्य है उसको समझेंगे तो वो कल को छूट सकती है. और हमारे आत्मा को समझोगे ना तो दूसरे के आत्मा को भी समझ पाओगे, समझ आ जाएगी. हाँ, तो पता चलेगा कि उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए अवॉइड करना है. तो ये थी मध्यम्य मनसम्य प्रत्यय फलय गन्धमल्ले उपभोग परिभोगे. ये उपभोग और परिभोग में जो दोष रूप वस्तुएं हैं उसका ज्ञान दिया, जो अतिचार में हम साल में एक बार सुनते हैं और वंदित सूत्र में मूल रूप से एक ही गाथा में आ जाता है, इसलिए उसको अपन डिटेल में समझते हैं. तो जब वो गाथा आएगी, जो सूत्र आएगा, तो अपने मन में काफी चीजें आएंगी, इसीलिए अपन उसके अर्थ देखें. बराबर? एनी क्वेश्चन? गुड. ओके. मांगलिक. नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्राणं, नमो लोय सवसाणं. एसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणाशनो च सर्वे सिंपळमं हवै मंगलम्. चत्तारि मंगलम् हरियन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साव मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्. चत्तारि लोकोत्तमा हरियन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साव लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा. चत्तारि शरणं पवचामि हरियन्ते, शरणं पवचामि सिद्धे, शरणं पवचामि साव, शरणं पवचामि केवली पन्नतो धम्मो, शरणं पवचामि. उपसर्गाक्षयम्यान्ते चित्यन्ते विघ्नवलय मन प्रसन्नता इति पूज्यमाने जिनेश्वरे. सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणं जैनं जयति शासनं. बोलो महावीर भगवान की जय. एक खास सूचना कि इस बार परीक्षण में प्रतिक्रमण वगैरह में इकट्ठे होने में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, इसलिए अभी भी 12-15 दिन का वक्त है. जिसको जो आता है उसको रिवाइज कर लेना अपने हिसाब से. जो बच्चों को जो सूत्र वगैरह बोलना आता है वो पॉसिबल है तो सबको रिवाइज करवा लेना, क्योंकि इस बार ऐसी परिस्थिति आने वाली है कि खुद को ही करना पड़ेगा, समझो. और दूसरी बात ये भी आने वाली है कि अभी 10-12 दिन में जो मेजर्स आते हैं, क्या आता है, उसके अनुरूप SGRS मैक्सिमम को एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा. लेकिन यू हैव टू डू योरसेल्फ. उसका जो प्रिपरेशन है, कभी कोई मेरे जैसा है कि आगे पढ़ा हुआ है और अभी आज याद नहीं है तो वो याद कर ले. अपने बच्चों को जैन शाला में पढ़ाया हुआ है या तो वो जो है उसको रिवाइज कर ले, तो मैक्सिमम एक दूसरे को एकोमोडेट करने में सुविधा रहेगी. इसलिए हो सके उतना स्वाध्याय और रिवीजन करा लेना, क्योंकि इस बार एक्सक्लूसिव परीक्षण आने वाला है. ओके. થેન્ક યુ. એ તો YouTube પર મળે જ પછી તો. હા, એ બધું પણ પછી
એ સાંભળીને કરી લેવાનું ના, બરાબર એટલે પોતાનો પણ થોડો અભ્યાસ હોય પણ તો જે ભાવ આવે. અમે શું છે અમારી સિસ્ટમ એવી છે ડેરાવાસીની કે બને ત્યાં સુધી જે સામાયિક લઈએ છીએ ને ત્યારે ઉપકરણોનો એ ઉપયોગ ન બધું કરવો કરી પડે. દો. પછીથી હા, હવે અમે એ રીતે બિલીવ કરીએ છીએ. એટલે મારી ખાસ વિનંતી છે કે જેટલા જેને જે આવડે છે ને એ એકવારનું રિવાઇઝ કરી અને બોલવું તો પડશે જ બધાએ, એવું થશે. કારણ કે 5 જણ એટલે 5 ને 5 10 મેક્સિમમ થવાના છીએ દરેક ઘરે. એટલે ઘણા બધા ઘરોમાં આરાધના થશે. તો પોતાની રીતે જ તૈયારી કરજો. અને આ લોકો પોતાની મેક્સિમમ કોશિશ તો કરશે જ કે કઈ રીતે આપણું એડજસ્ટમેન્ટ થાય છે. એ લોકો તો સતત કારણ કે આ લોકો જો ત્યાંથી જે જૂન દ્વારા ત્યાં મૂકી દે ને પેલું કેમેરો, તમે બધા બેસીને 4-5 જણ કરાવો તો બીજા બધા જોતા કરે. એટલે એ બધા એટલે options ટચ ના કરે પણ જોતા કરે. એ બધા ઓપ્શન્સ એ લોકો વિચારે છે કે કઈ આજે રીતે મીટિંગ હતી કઈ ખબર નહીં. પણ લેટ્સ સી એ લોકો શું ડિસાઈડ કરે છે. કમિટી અને એ લોકો દીર્ઘદ્રષ્ટિ આપણા કરતા વધારે દીર્ઘદ્રષ્ટા છે એટલે એ લોકો વિચારશે એ આપણને સજેસ્ટ કરશે. ના, અને આ 9 તારીખ પછી કદાચ પણ આ તો બધા ભૂલી જશે. આપણે આપણી તૈયારી કરી દઈએ એમ, બીજું કઈ નહીં. આમાં ભાવ કેવું છે કે સાથે કરીએ ને તો જ ભાવ વધારે સારી રીતે થાય તો છે. એવું જ છે પણ એ તો ભાવ તો પછી ઘરમાં મંદિરમાં બેસી કરો. એટલે 5-5 લોકો બી ભેગા થઈને કરે ને. એટલે આપણે જોઈ લેવાનું કે કેવી રીતે આપણે અત્યારે જે તૈયારી આપણાથી થતી હોય એ કરવાની. પછી એ છેલ્લે એ પણ છૂટી જવાના એટલે એ પણ ગમે ત્યારે નકામું થઈ જશે. કોઈ કરોડો ભેગા કરીને બેઠો હોય પણ આફતના સમયે એની પાસે 1 રૂપિયો ન હોય એવું થઈ જાય. એટલે આપણે કરોડો ભેગા કર્યા હોય પણ ના કામ આવે એમ એવું થાય. છતાં બી આપણે આપણી મહેનત કરવાની. ઓકે ડન. ઓકે. જય જીનેન્દ્ર. જીનેન્દ્ર પ્રણામ.